হ্যালো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো যদি স্ক্রিনে কোনো টাইপের যদি কিছু এরর বা স্ক্রিন প্রপারলি ভিজিবল না থাকে আমাকে একবার ইনফর্ম করে দিও, আমার সফটওয়্যারে একটু প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে? আমি ওটা 1 ঘন্টা ধরে ট্রাই করছি, ঠিক আর হলো না, এখনো প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। যদি স্ক্রিনে কোনো ধরনের যখন হাফ স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ বা স্ক্রিন ভিজিবল হচ্ছে না, আমাকে একবার ইনফর্ম করে দিও, ঠিক আছে? আওয়াজটা ক্লিয়ার তো, স্পষ্ট? কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো নেই তো, নয়েজ? ঠিক আছে। ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আছে একটু, একটু আছে মানে বেশিটা নেই তো, ডিস্টারবেন্স হচ্ছে না তো বেশি? খুব একটা হচ্ছে না। ওকে ওকে, ঠিক আছে, দেন ওটা সর্টেড আছে, ঠিক আছে। তো দেখো এখানে আমাদের কাছে রয়েছে ফার্স্ট কোশ্চেনটা। ফার্স্ট কোশ্চেনটা প্রায় ইজি আছে, ठीक है। सो सिंबल्स ए एंड एफ, मैसेज किया क्या? হ্যাঁ বলো। কি হয়েছে, কোনো ইস্যু আছে? না না স্যার। ওকে, ঠিক। সো এখানে আমাদের দেখো, এখানে দেখো আমাদের ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা রয়েছে, সিম্বলস এ এফ আর ইউজড ইন উইচ অফ দ্য ফলোইং। ওকে, সো সিম্বল এ, অপশন সি। এ টু এফ আর ইউজড ইন উইচ অফ দ্য ফলোইং, আমাদের কাছে চারটে অপশন আছে। সো বাইনারি নাম্বার সিস্টেম, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो স্যার की অপশন সি। হ্যাঁ, তো দেখো নিচে হয়ে যাবে অপশন সি। তো দেখো অপশন সি কেন, কেন কি বাইনারিতে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই অনলি টু টু 0 and 1। ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে আমাদের কাছে 10 ডিজিট থাকে, 10 digits, 0 to 9। And if we talk about hexadecimal number system, then we have 0 to 9, and apart from that ABCD up to 15, মানে 0 থেকে 9 অবধি থাকে। অ্যান্ড তারপরে 10 থেকে 15 অবধি আমরা অ্যাজ এ ABCD রিপ্রেজেন্ট করি। অ্যান্ড অক্টাল নাম্বারে জানো 0 to 7, টোটাল নাম্বার অফ ডিজিটস 8। সো এটা একটা রিভিশন হয়ে গেল। नंबर सिस्टम ए टू एफ आर यूज इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो which one of the following is not a search engine, কোশ্চেনটা ঠিক করে দেখো, নট জিজ্ঞেস করেছে, নট আ সার্চ ইঞ্জিন। চারটে অপশন রয়েছে, নট আ সার্চ ইঞ্জিন, ঠিক আছে। সো গুগল, ক্রোম, ইয়াহু, বিং। एनीवन? ইয়াহু। ठीक है। ইয়াহু। और एनीवन एल्स? ওকে, সো বিংটা কি জানি সেটা একটু বলবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই দেখো, ওই আমি যে নিচে এক্সপ্লেনেশন লিখে দিয়েছি আর সব কিছু আছে তোমাদের, কিছু তোমরা যদি এই নোটসটা যদি যখন রিভাইজ দেবে, তো কোন অ্যান্সারটার রিজনটা কি, ওই এক্সপ্লেনেশনে সব কিছু প্রপারলি ডিটেলে লেখা আছে। অনেক কিছু রিভাইজ তুমি করতে পারবে, ঠিক আছে? তো ওইটা নিয়ে কোনো অপশন, ওইটা নিয়ে কোনো ওয়ারিজ নেই। আমি ফার্দার তাও এক্সপ্লেন আমি করে দিচ্ছি। তো দেখো গুগল, সো এখানে চারটে অপশন রয়েছে, গুগল, ক্রোম, ইয়াহু, বিং। সো আমি বলছি গুগল ইজ আ সার্চ ইঞ্জিন। গুগল সার্চ ইঞ্জিন কেন, আমরা যখনই কিছু আমাদের যখন সার্চ ইঞ্জিন কি বেসিক্যালি আমরা যখন কিছু ইনপুট দিই ওভার দ্য ওয়েব, আমরা যখন কিছু ইনপুট দিই, সো ওই ইনপুটের রিলেটেড আমরা যখন আউটপুট পাই, ওই কাজটা করে সার্চ ইঞ্জিন, ঠিক আছে? সার্চ ইঞ্জিন এখানে জিজ্ঞেস করেছে নট আ সার্চ ইঞ্জিন, ঠিক আছে, নট আ সার্চ ইঞ্জিন। সো গুগল ইজ আ সার্চ ইঞ্জিন। পিং, পিং ইজ অলসো আ সার্চ ইঞ্জিন, পিং ইজ অলসো আ সার্চ ইঞ্জিন। দিস ইজ পাওয়ার্ড বাই মাইক্রোসফট, মাইক্রোসফট। ক্রোম, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ক্রোম, Chrome is not a search engine. সবই আছে ওখানে, থাক করতে। Oh, আরে hello. সব আলু টালুও তো আছে, সব দিন। কারোর অডিও অন আছে, প্লিজ মিউট yourself. This is a web browser. So Google is a search engine, Bing is also a search engine from Microsoft, and Chrome is not a search engine, it's a web browser, and Yahoo is also a search engine. Yahoo search.
So Google is a search engine, Yahoo is a search engine, Bing is also a search engine, Chrome is not a search engine, it's a web browser. Web browser কেন দেখো, Chrome is not search engine because it is a web browser that uses the search engine to retrieve and view information from web pages present on the web servers. Basically Chrome হচ্ছে medium through which we can use search engine. ঠিক আছে, যদি ক্রোম না থাকতো তুমি গুগলে যেতে কোথায় থেকে। তো ক্রোম ইজ বেসিক্যালি দ্য ওই অ্যাপ্লিকেশন with the help of which we can use the particular search engine. তুমি ক্রোম থেকে, তার মধ্যে এটা না যে ক্রোম থেকে তুমি শুধু গুগল সার্চ ইঞ্জিনটা ইউজ করতে পারবে, তুমি একটা ওয়েব ব্রাউজার থেকে তুমি যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন ইউজ করা যাবে, মানে ক্রোম থেকে তুমি বিঙ্গো ওপেন করতে পারবে, ক্রোম থেকে ইয়াহুও চলবে, ক্রোম থেকে গুগল, এই তিনটে, এছাড়া যত ডাকডাকগো সব কিছু, মানে যত ধরনের তোমাদের কাছে সার্চ ইঞ্জিন নোন আছে সব কটা যে কোনো একটা ব্রাউজার থেকে ওটা অপারেট হতে পারে। ঠিক আছে, সো এটা না যে ক্রোম ইজ ডেভেলপড বাই গুগল, সো গুগল উইল অনলি দ্য সার্চ ইঞ্জিন উইচ ক্যান ইউজ ক্রোম, এরকম কিছু নেই। ওই মানে একটা ওয়েব ব্রাউজার থেকে তুমি যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন তুমি ইউজ করতে পারো। ঠিক, অ্যান্ড সার্চ ইঞ্জিনের ইউজটা কী হচ্ছে, এটা রিট্রাইভ অ্যান্ড ভিউ ইনফরমেশন ফ্রম ওয়েব পেজেস প্রেজেন্ট অন দ্য ওয়েব সার্ভার্স। সো সিম্পলি কী করে, আমরা যে কোয়েরিটা দিই গুগলে, আমি টাইপ করলাম ইনফরমেশন, হোয়াট ইজ ইনফরমেশন টেকনোলজি, কী করবে ও গুগলের সার্ভারের সাথে নিজেকে কানেক্ট করবে, ওইখানে যে বেস্ট সুটেবল আনসার, ওইখান থেকে বেস্ট সুটেবল ওয়েবসাইটগুলো আমাকে ওইখানে লিস্টে ডিসপ্লে হয়ে গেল। তারপর আমি যেই ওয়েবসাইটের সাথে আমি ফ্যামিলিয়ার, আমি ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে আমি আমার ইনফরমেশনটা আমি অ্যাজ পার আওয়ার নিড আমি করতে পারবো। সো বেসিক্যালি সার্চ ইঞ্জিন কাজটা কি, ইনফরমেশন খুঁজে দেওয়া, লাইক ফিল্টার করে, ইনফরমেশন তো অনেক রয়েছে, তো ওইখান থেকে বেস্ট ইনফরমেশনটাকে ফিল্টার করে তোমার কাছে প্রেজেন্ট করে দেওয়া, এটাই হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনের মেন কাজ। ঠিক, অ্যান্ড ক্রোম হচ্ছে একটা ওয়েব ব্রাউজার। তো দেখো, ওয়েব ব্রাউজার ইউজেস দ্য সার্চ ইঞ্জিন টু রিট্রাইভ অ্যান্ড ভিউ দ্য ইনফরমেশন ফ্রম ওয়েব পেজেস প্রেজেন্ট অন দ্য ওয়েব সার্ভার্স। সো ওয়েব ব্রাউজারকে তুমি একটা বলতে পারো কি, ওয়েব ব্রাউজার ইজ বেসিক্যালি আ টাইপ অফ মিডিয়াম থ্রু উইচ উই আর এবল টু অ্যাক্সেস দ্য সার্চ ইঞ্জিন। ঠিক আছে, সো ওইটা একটা ইন্টারফেস একটা তো তৈরি করে দেয়, তুমি ক্রোমে গেলে ওখানে একটা সার্চের অপশান থাকে, তুমি ওইখানে গিয়ে যা কিছু একটা টাইপ করবে। ঠিক, সো ওয়েব ব্রাউজার বেসিক্যালি একটা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস বলতে পারো, যেইটা আমাদেরকে সার্চ ইঞ্জিনটা ইউজ করতে আমাদের খুব কম্প্যাটেবল করে দেয়, মানে ওইখানে যে ইন্টারফেসটা অনেকটা ইউজার ফ্রেন্ডলি থাকে, অ্যান্ড উই ক্যান ইজিলি यूज द वॉट एवर सर्च इंजन एज पर रिक्वायरमेंट, क्रोम, गूगल, बिंग, डकडको, बैडू। ठीक, सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए, देखो जैसे एग्जांपल में तुमको का क्वेश्चन मैंने बताया था ना, एग्जांपल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, फाइंड द ऑड वन आउट टाइप का, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। तो फॉर दैट रीज़न मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिख दिया है। देखो गूगल, याहू, बिंग, डकडको, बैडू, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब सर्च इंजन है। ठीक है, दीज आर ऑल सर्च इंजन, मैंने लिखा नहीं है, these are all search engine, these are all examples of search engine. And Mozilla Firefox, Netscape Navigator and Google Chrome, these are all the examples of web browser. सो नेक्स्ट टाइम से कंफ्यूज मत होना, पहले देख लेना कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पे पूछा था नॉट अ सर्च इंजन, नॉट अ सर्च इंजन मतलब बेसिकली जो रिलेटेबल सब यही सब है, तो जो चीज़ रिलेटेबल लगता है ना, जैसे सर्च इंजन एंड वेब ब्राउज़र, तो क्रोम और गूगल दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो उसी पे जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो उन दोनों पे पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो जो रिलेटेड टर्म है उन दोनों के बीच में ही पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस वन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। सो ये थोड़ा तुम लोग भी नोटिस कर सकते हो कि जो रिलेटेड टर्म है वहाँ पे थोड़ा अच्छा से थोड़ा फोकस होके क्वेश्चन को रीड करो, देन हो जाएगा। एंड ये सब एग्जांपल्स है, गूगल, याहू, बिंग, डकडको, बैडू, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सर्च इंजन का हो गया, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउज़र। तो ईजिली एग्जाम्पल से गो थ्रू करना, क्योंकि एग्जाम्पल से तुम लोग देखे होगे क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से। ओके, सो एनी डाउट, यहाँ से कोई डाउट है सर्च इंजन एंड वेब ब्राउज़र से रिलेटेड? ना सर। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी एडेड है। ठीक है, तो जितना इन्फॉर्मेशन मुझे सफिशिएंट लगा ऐड करना चाहिए तो मैंने वो सारा ऐड वगैरह कर दिया। तो जो তোমাকে সবকটা পড়তে হবে না, একবার রিডিং দিয়ে দিও, যদি মনে রাখতে পারো খুব খুব ভালো, না রাখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই।
ঠিক আছে, আমি এক্সট্রা ইনফরমেশন যতটা তোমাদের মানে सिंपल इन्फॉर्मेशन जो बहुत यूज़फुल है बट सिंपल, जैसा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ज़्यादा कंप्यूटर में नहीं घुसे हैं, जो सिंपल सिंपल चीज़ है वो सब मैंने अलग से नोट डाउन कर दिया वो एक्सप्लेनेशन के नीचे में। तो गूगल वेब सर्च इंजन है, ओनर गूगल है, और फाउंडर का नाम ऑब्वियसली सारे ये सर्जी ब्रिन एंड गैरी पेज, ये दोनों गूगल के फाउंडर है। एंड याहू का जेडी यंग, डेविड फिगो, ठीक। एंड बिंग का वो माइक्रोसॉफ्ट एंड फाउंडर है स्टीव बॉलमर। ये सब कंपनी है, ये सब बस ऐसे रीडिंग के, ठीक। CSS, और ये सब पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन है सब पास्ट ईयर का है, मुझे जितना मिला मैंने सब उठा लिया। CSS, so CSS basically stands for मैसेज, Sure, option A. CSS basically stand for cascading style sheet, हाँ ऑप्शन ए, ठीक है। सो देखो CSS मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ाया है शायद, एज फार आइजिंग। सो CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसका यूज़ क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ कहाँ पे होता है। HTML सुनो, HTML उसमें क्या क्या आता है, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। तो HTML है एक मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML है मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्कअप लैंग्वेज, और HT मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो ऐसे टाइप से टैग्स के अंदर में लिखा जाता है, ठीक है। P यहाँ पे एंड P ऐसे करके टैग्स के अंदर लिखा जाता है। अभी HTML में क्या हो सकता है ना, जैसे ये देखो, ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पे मैंने CSS दिया, ये थोड़ा बोल्ड है, ये हेडिंग हो गया, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा यहाँ पे मल्टीपल लाइन में, ये फिर बोल्ड है, एंड ये फिर मैंने पैराग्राफ लिखा, ठीक है। सो HTML का काम है वो सिर्फ टेक्स्ट ये कर सकता है, टेक्स्ट को टाइप कर सकता है। बट जो डिज़ाइनिंग वाला काम है, ये जैसे मैंने इसको कलर दिया, मैंने इसको किया बोल्ड, ये बोल्ड भी है, ये टेक्स्ट बोल्ड है प्लस इटैलिक भी है, और इसमें कलर भी है ब्लू। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे जो टेक्स्ट में जो मैंने कुछ टेक्स्ट पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स डाला है, टेक्स्ट पे मैंने कुछ चेंजेस करा है। सो HTML कैन ओनली बी यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट। अगर सिंपल ऐसे सिंपली अगर HTML को देखा जाए तो, ठीक है, वो बस एक पैटर्न, वो जो पैटर्न बनाते हैं ना, जैसे हमको कलम चाहिए, रो चाहिए, तो वो एक बैक जो प्रिंट है, ब्लू प्रिंट टाइप का वो बना देगा, और उसमें टेक्स्ट वो इंसर्ट कर देगा। बट वो टेक्स्ट जैसे अगर तुम जैसे देखोगे तो जैसे बहुत सारा वेबसाइट के ऊपर नेविगेशन होता है, नेविगेशन में ऐसे होता है, यहाँ पे होता है होम, यहाँ पे होता है, सोचो जैसे अगर तुम UGC नेट के वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड्स का ऑप्शन आता है, फिर यहाँ पे कुछ अबाउट अस का आता है, ठीक है, कुछ आता है। तो जैसे मैं डाउनलोड पे ये करता हूँ क्लिक, तो वो मुझे एक नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट होकर चला जाता है, ठीक है। अबाउट अस पे जाता हूँ तो अबाउट अस पेज पे चला जाता है, ये मैंने क्लिक किया और मुझे दूसरा पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। तो ये सब जो काम है ना, ये सब काम करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कि मैं कुछ एक्शन दूंगा एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ रेस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है, कुछ एक्शन दूंगा और कुछ रेस्पॉन्स जनरेट होगा। तो ये सब काम करता है जावास्क्रिप्ट, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और CSS का क्या काम क्या है, देखो बहुत सारा, अगर तुम एक वेबसाइट को डेस्कटॉप पे ओपन करोगे तो उसका जो ये जो नेविगेशन टैब है, ये यहाँ से ऐसे ओपन होता है, और उसी वेबसाइट को जब हम फ़ोन पे ओपन करेंगे तो नेविगेशन वाला देखना, नेविगेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे 3 ठो ये होता है, 3 ठो ऐसे ये दिया हुआ है डॉट, जैसे इसको ये करोगे क्लिक, तो यहाँ पे जो सब ऑप्शन रहता है, यहाँ पे जो सब ऑप्शन रहता है वो सब यहाँ पे ऐसे नीचे लिस्ट डाउन हो जाता है, इस टाइप से नहीं आता है। तो एक वेबसाइट को डेस्कटॉप पे अगर ओपन करोगे तो वो कुछ और दिखेगा, फ़ोन पे अगर ओपन करोगे तो वो फ़ोन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर देगा। तो इस काम में ये जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, इसमें CSS का हेल्प लिया जाता है कि डेस्कटॉप पे जब ओपन करेंगे तो उसका विड्थ इंक्रीज़ हो जाए, वो किसी और टाइप से डिस्प्ले हो, एंड ठीक है। और मतलब जावास्क्रिप्ट का भी इसमें काम आता है, ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। बट जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है कि डेस्कटॉप पे वो एनलार्ज हो जाएगा और फ़ोन पे वो स्क्रीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर देगा, वो सब CSS के अंदर आता है, ठीक है। सो CSS क्या करता है, एट्रीब्यूट्स डालता है, उसको स्टाइल कर देता है, वो टेक्स्ट को ये कर सकता है, वो तो जितना भी स्टाइलिंग का जितना भी काम है
स्टाइलिंग का जितना काम है वो सब CSS का काम है। वेबसाइट में स्टाइलिंग का जितना काम होता है वो सब CSS का काम होता है। और जितना भी फंक्शन लाइक हमने क्लिक किया वो कहीं और चला गया, किसी लिंक पे क्लिक किया तो डाउनलोड होने लगा, ये क्लिक किया तो कुछ ये हो रहा है, मतलब यूज़र के हिसाब से कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, यूज़र के रिक्वेस्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ वो वेबसाइट में रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, वो सब का काम जावास्क्रिप्ट का है। और HTML क्या है, ये बस एक स्टैटिक वेब पेज डेवलप करके भेज सकता है और जिसमें लिंक्स प्रेजेंट हो। स्टैटिक स्टैटिक मतलब जैसे तुम अगर किसी लिंक पे, जैसे ये लिंक 1 है, क्लिक किए तो ये दूसरा लिंक पे लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो फाइल डाउनलोड होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बस स्टैटिक, वो लिंक बाय लिंक एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा, दूसरे पेज से थर्ड पेज पे, वो किसी टाइप का और ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकता। वो एक स्टैटिक पेज है। स्टैटिक पेज है सिंपल एक पेज है, बस उसमें लिंक्स ऐड अप है। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट उसमें ऐड किया जाता है तो वो डायनामिक हो जाता है। ठीक है, तो अगर स्टैटिक पूछे कि स्टैटिक और डायनामिक में क्या अंतर है, स्टैटिक एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है और डायनामिक मतलब क्या होता है, डायनामिक यानी यूज़र कुछ उस पर रिक्वेस्ट देता है, यूज़र किसी ऑप्शन पे क्लिक करता है एंड वो यूज़र के अकॉर्डिंग या जिस हिसाब से वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया उस हिसाब से वो रेस्पॉन्स को जनरेट करता है, तो वो हो जाएगा डायनामिक। ठीक है, और CSS का मेन काम क्या है, वो डिज़ाइनिंग के काम आता है। HTML का अगर हमको डिज़ाइन करना है प्रॉपरली तो वो CSS से वो डिज़ाइन किया जा सकता है। और फुल फ्रॉम कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, और CSS is a style sheet that stands for cascading style sheet and is used HTML documents mainly designed to separate the presentation and content including layout, colors and fonts। बहुत सारा का जितना टाइप का डिजाइनिंग देखते होगे किसी भी वेबसाइट में वो मेनली CSS के थ्रू किया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पता है कि MOOC स्टैंड्स फॉर एनीवन? है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। हाँ ठीक है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, ये लेक्चर नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है, IT इंफॉर्मेशन ITC के रिगार्डिंग है और बहुत सारा MOOC प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में ये वाला चीज़ हो जाएगा। MOOC स्टैंड्स फॉर, अभी के लिए याद रखो, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सो MOOC क्या है, MOOC बेसिकली एक इनिशिएटिव है बाय ये गवर्नमेंट। MOOC इज़ बेसिकली एन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट एंड MOOC के अंदर बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजी लॉकर एक है, स्वयं एक ये है। तो ऐसा करके बहुत सारा एग्जाम्पल्स है MOOC का। सो बेसिकली MOOC का एम क्या है, इसका मेन जो एम है टू प्रोवाइड फ्री एडुकेशन ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में जब हम फ्री एडुकेशन को हम प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वो जितना भी वो प्लेटफॉर्म्स है, जो प्लेटफॉर्म जो ये चीज़ में हेल्प आउट कर रहा है, प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन एडुकेशन, और दोज प्लेटफॉर्म्स आर बेसिकली रेफर टू एज MOOC शॉर्टर टर्म पे। तो जैसे अब MOOC बस ये नहीं है जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव है बस उसी को MOOC कहेंगे, लाइक जो बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो गवर्नमेंट अंडरटेकन नहीं है बट दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्री एडुकेशन। आई थिंक एक है खान अकेडमी बोल के है, खान अकेडमी, ये डोनेशन पे चलता है। ठीक है, खान अकेडमी हो गया, कोर्सेरा भी है। ठीक, तो ये सब कुछ ऐसा ये प्लेटफॉर्म है, फ्री एडुकेशन देते हैं। फ्री एडुकेशन मतलब फ्री, ओपन फॉर ऑल है एंड किसी टाइप से किसी से पैसा चार्ज किया नहीं जाता है। ये या तो जो गवर्नमेंट अंडरटेकन है तो वो तो उस सब का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट का हो गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग प्राइवेटली इस काम को करते हैं उन सब का प्लेटफॉर्म जो है उनको भी MOOC प्लेटफॉर्म ही कहेंगे। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो फ्री में एडुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, ओपन फॉर ऑल है, दोज प्लेटफॉर्म आर सिंपली टर्म्स एज MOOC प्लेटफॉर्म। अब ये चीज़ डिपेंड करता है कि वो किसके द्वारा उसको हेल्प मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट अंडरटेकन है तो गवर्नमेंट इसको हेल्प करेगा, उसका जो भी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है। एंड अगर वो कोई प्राइवेट है तो वो इससे चलता है, डोनेशन से चलता है। ठीक है, तो ये खान अकेडमी बेसिकली ये डोनेशन से ही चलता है, ये मेरे को एक पता है, जगह भी बहुत होगा मेरे को वो सब मेरे को नहीं पता है, बट खान अकेडमी इज़ वन ऑफ द मतलब बहुत फेमस है। सो ये हो गया MOOC प्लेटफॉर्म और इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बेसिकली यहाँ से पूछता है कि MOOC का फुल फॉर्म ही पूछता है। ठीक है, फुल फॉर्म जिसका जो भी होता है वो पूछता है। एंड MOOC के अंदर जितने सारे भी ये सब है जो प्लेटफॉर्म्स है, MOOC प्लेटफॉर्म्स
मूक प्लेटफॉर्म्स जो है तो उनके भी बहुत बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, तो उन सब का सबका शॉर्ट फॉर्म है, तो उन सब का भी बस एक्सपेंशन पूछता है कि ये शॉर्ट फॉर्म है कि फुल फॉर्म ऑफ स्वयं क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ ये क्या होता है, तो ज़्यादा इसको डिटेलिंग में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सो मूक वगैरह टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में क्लास लेक्चर होगा उसमें पूरा मूक का बारे में सब कुछ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये होगा कुछ एक्सप्लेनेशन तो मैंने लिखा होगा। ठीक है, so MOOC is open online course aimed at unlimited participation and open access via the web. Over the web and online education basically aim to free up online education additional to traditional course materials such as filmed lectures, reading and problems set. Many MOOC provide interactive course with user forum or social media discussion to support community interaction among student, professor and teaching assistant, as well as immediate feedback to quick quizzes and assignments. हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम बस इसका ये एम ये नहीं है कि बस वो मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ फोरम्स यानी ऐसा वेबसाइट जहाँ पे कोई या जहाँ पे मतलब कोई भी अपना अकाउंट बना सकता है, वहाँ पे कोई एक ऐसा यूज़र वन है वो कुछ क्वेश्चन पूछा एंड और बहुत सारा यूज़र ने मिलकर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया। जैसे एक फोरम जैसा टाइप का वेबसाइट जो हो गया ब्रेनरी हो गया। ब्रेनरी में वैसे तो ब्रेनरी एक ऐसा नॉर्मल वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन भी देता है एंड उसका एक फोरम पार्ट भी है। फोरम पार्ट में देखोगे अगर कोई एक ये क्वेश्चन अगर वहाँ पे कोई एक सर्च किया जाता है तो उसका आंसर देने के लिए बहुत सारे यूजर्स टीचर्स अवेलेबल है। सो उसको कहते हैं फोरम टाइप का वेबसाइट। और क्विजेज असाइनमेंट्स ये सब भी है मूक में। और मूक्स आर रिसेंट एंड वाइडली रिसर्च डेवलप्ड इन डिस्टेंस एजुकेशन, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 एंड emerged as a popular mode of learning in 2012. सो 2008 में इंट्रोड्यूस्ड है एंड स्लोली जैसे वो ग्रो हुआ तो 2012 में वो एक पॉपुलर मीन्स ऑफ लर्निंग हो गया। तो ऐसे पॉपुलर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जैसे जैसे पीपल फैमिलियर होते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी चीज़ है उसका जो ठीक है जो भी ये पॉपुलरनेस है वो इंक्रीज होते जाएगा। सो अर्ली मूक्स ऑफन एम्फसाइज open access features such as open licensing of content, structured learning goals to promote the reuse and remixing of resources. Some later MOOCs use closed license for their course material while maintaining free access for students. So license close है, like license यानी यहाँ पे देखो open licensing and closed licensing. फ्री इस क्लोज्ड लाइसेंस मतलब ये नहीं कि ये फ्री नहीं है, ठीक है, तुम एक्सेस कर सकते हो। क्लोज्ड लाइसेंस यानी यू कैन एक्सेस बट यू कैन नॉट यूज फॉर अदर पर्पसेस। ओके, यू कैन एक्सेस फॉर इट फॉर फ्री बट यू कैन नॉट यूज देम फॉर अदर पर्पसेस। तो इसका मतलब ये लाइसेंस का मतलब ये, लाइसेंस का मतलब क्लोज्ड लाइसेंस मतलब ये नहीं होगा कि वो चीज़ अब फ्री नहीं है, वो फ्री है बट लाइसेंस किसी और के पास है और लाइक वो जिस हिसाब से चाहे उसको मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक, एंड ये हो गया मूक। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज, इसका आंसर बताओ कोई। স্যার আমার অপশন এ এলো। ऑप्शन ए, बाकी और कोई? करो, 1 मिनट का टाइम तो कितना हो रहा है टाइम? 7:30, 35 को कर रहे हैं 35 बेस 10 टू बाइनरी। ऑप्शन ए, तो 10011 এটাই আসবে তো? স্যার আরেকটা জিরো হবে না? কোথায়? আচ্ছা স্যার আচ্ছা, 2 এর পাশে। हाँ 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 हाँ, ঠিক ঠিক। 1 অপশন বি হবে। বি কেন হবে? আচ্ছা
ठीक है 2 17 2 34 135 2 8 16 117 2 4 8 2 2 4 2 1 2 না বি হবে না তো 1 1 000 তো আসছে না এখানে দেখো স্যার অপশন এই তো আসছে। হুম হ্যাঁ হ্যাঁ অপশন এ হবে ঠিক 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 আছে ठीक है ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर ठीक है तो ये आपको ये कोई भूले नहीं होगे इजी है ये सब कन्वर्जन इजी है तुमको बेसिकली डेसिमल बाइनरी डेसिमल ही आता है ठीक सो नेक्स्ट क्वेश्चन gif.jpg and bmp png are used as extension for files which store ইমেজ ডাটা। image data. this data image data so gif jpg bmp png are used as extension for file which store image data ठीक है ये हो गया एंड इसके नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन होगा ठीक है ग्राफिक्स इमेज स्टोर डिजिटली यूजिंग अ स्मॉलर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ग्राफिक फाइल फॉर्मेट तो ये सब तो नहीं चाहिए तो इंक्लूडिंग बिट ये सब देखो बहुत सारा फॉर्मेट मैंने अलग से भी यहाँ पे लिखा है अपार्ट फ्रॉम मतलब जो भी मैंने लिखा है ये TIFF वहाँ पे JPEG GIF PNG stored as यहाँ पे एक they can be also stored as raw unprocessed data so these are some formats of इमेज और ग्राफिक PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट GIF का होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट TIFF का होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट JPEG का जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप फाइल फॉर्मेट DMP का बिटमैप इमेज फाइल फॉर्मेट ठीक है and GUI graphical user interface is a system of interactive visual components for computer software so GUI is a type of interface which makes user friendly with any kind of system so that any user can easily access it with the help of icons के फॉर्म में अगर कुछ मैसेज दिया जाता है जैसे यहाँ पे इरेज है इरेज मतलब क्या मतलब ये सब कुछ हट जाएगा यहाँ से इरेज नेक्स्ट मतलब वो नेक्स्ट पे चला जाएगा प्रीवियस मतलब पहले पे आ जाएगा तो ये आइकन के थ्रू हमको समझाना चाह रहा है ठीक है कि ये ऑप्शन पे क्लिक करने से ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होगा सो दीज आर द सम इंटरैक्टिव थिंग्स एंड दीज टाइप ऑफ इंटरफेसेस आर नोन एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सो ये हो गया एक रिवीजन हो गया एंड ऑडियो भी मैंने लिख दिया एक जगह तो एक बार रीडिंग करोगे तो सब ऐसे याद आ जाएगा एंड यहाँ पे ये देखो ये वाला चीज़ MP3 अगर MP3 पूछे ना तो देखो MP3 MPEG1 ऑडियो लेयर 3 और MPEG2 ऑडियो लेयर 3 इन तीनों का फुल फॉर्म सेम ही होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एंड ये कोई फॉर्मेट नहीं है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक है এটা একটা অর্গানাইজেশন যারা দেখে मतलब ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে যারা অডিও এনকোডিং দেখে ওই অর্গানাইজেশনের নাম হচ্ছে মুভিং পিকচার এক্সপার্ট গ্রুপ সো তারাই এই সব ডেভেলপ করেছে MP3 MPEG ঠিক আছে ফর্মালি নোন एज दिस आर डिवाइसेस अपार्ट फ्रॉम दैट WAV AFF MIDI वाला आई थिंक ये आया था ये याद रखना ये शायद आया था WAV भी आया था ठीक है MIDI भी आया था MIDI का फुल फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट एंड दीज आर द वेरियस वीडियो फाइल फॉर्मेट तो वीडियो फाइल फॉर्मेट रिलेटेड है नहीं तो इसको स्किप करते हैं नेक्स्ट पे जाते हैं सो FTP stands for FTP anyone ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল তবে স্যার অ্যান্সার গুলো তো এখানটায় দেখাই যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই তো দেখা যাক না কি হয়েছে FTP stands for file transfer protocol so fast transfer protocol file tracking protocol file transfer protocol FTP file transfer protocol and इसका काम क्या है डाउनलोडिंग टू अपलोडिंग और डाउनलोडिंग एनी टाइप ऑफ कंटेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा और एक जो होता है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन ठीक तो इसको रेटिंग करेंगे ना कि FTP क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है वेयर अ क्लाइंट विल आस्क फॉर अ फाइल एंड अ लोकल और रिमोट सर्वर विल प्रोवाइडेड सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल okay
सो देखो अभी मैं बता रहा हूँ कि एक यूज़र है और ये एक सर्वर है. So when the user is asking for some information, text based information, okay, so वो TCP IP से हो जाएगा. But when the user want to download something, suppose उसको एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, तो क्वेश्चन पेपर इज अ काइंड ऑफ फाइल, ठीक है. So the sending bit will take place through FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये जो सेंडिंग है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा, सो दैट नो एक्सटर्नल हैकर और एनीवन कैन एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन. तो वही होगा कि अगर यहाँ से वो इसको एक्सेस मिल गया इस नेटवर्क का, तो या तो इस सिस्टम में आ जाएगा, नहीं तो इस सिस्टम में आ जाएगा. दोनों में से किसी एक सिस्टम को वो हार्म कर सकता है. एंड प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स ओवर द इंटरनेट. ठीक है, ये हो गया. प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल्स ओवर द इंटरनेट. FTP is used for sending and files between client and server, and apart from that the communication is based on TCP IP model, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है. सो 8 अब क्वेश्चन 8, इसका कोई आंसर दो. नॉट, ध्यान से देखना, नॉट पूछा है, नॉट. ठीक है, फिर BMP. जस्ट अभी मैंने पढ़ाया, जस्ट इस क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन ही मैंने सारा एग्जांपल बताया है. सर ऑप्शन डी. एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? यू आर ट्राई. सी, BMP. सर GIF B. GIF B, ओके. क्यों, अभी तो जस्ट मैंने बताया ना. PNG, GIF, BMP, GUI. PNG एक फाइल फॉर्मेट है, GIF भी एक फाइल फॉर्मेट है ना. GIF, BMP अभी तो मैंने बताया था, बिटमैप इमेजेस. GUI ये क्या है? ग्राफिकल इंटरफेस. সো দেখো এক্সাম্পলস, তো তোমরা দেখো এক্সাম্পলস থেকে প্রায় ভালোই কোশ্চেন আসে. ওরা খুব একটা কনফিউজিং একটা এক্সাম্পল থেকে কোশ্চেন আসে, ঠিক আছে. আর এখানে নট লিখে দেয়. তো যখনই দেখবে তোমরা সোজা কোশ্চেন যখনই দেখবে, তোমার ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইসের ক্ষেত্রেও লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম, ওরা সিম্পল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছিল, বাট একটা নট দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল. তো সিম্পল কোশ্চেন এদের একটা প্যাটার্ন আমি যেটা অবজার্ভ করেছি, कि যখনই কোশ্চেনটা অনেকটা সিম্পল হয়ে যায়, ওরা দিয়ে দেয় নট দিয়ে ওরা 4টে অপশন দিয়ে দেয়, উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট দিস বা নট দিস. তো এখানে দেখো PNG একটা ফাইল ফরম্যাট, GIF-টাও একটা ফাইল ফরম্যাট, গ্রাফিক্স, ঠিক আছে. আর BMP-টাও একটা ফাইল ফরম্যাট, বিটম্যাপ. আর GUI-টা এটা একটা ইউজার ইন্টারফেস. এক্ষুনি জাস্ট আমি এক্সপ্লেন করছিলাম না, দেখো এখানে শো ডেস্কটপ করবে, ডেস্কটপে ইরেজ করবে, সবকটা ইরেজ হয়ে যাবে. ব্যাকগ্রাউন্ডে চেঞ্জ করবে, ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা অপশন চলে আসবে. সো এখানে আমি আইকনের থ্রু আমি কিছু একটা কমান্ড কম্পিউটারকে দিতে চাই. আমি কম্পিউটারকে বলতে চাই তুমি আমাকে একটা কাজ আন্ডো করে দাও বা রিডও করে দাও. বা তো আমি এখানে দু ধরনের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া যাবে, আইদার থ্রু আইকনস অর আইদার থ্রু কমান্ড. সো কমান্ডের ক্ষেত্রে দেখো অনেক কটা কমান্ড তোমাকে মুখস্থ করতে হবে, বাট আইকন থাকলে আমি ইজিলি দেখতে পাবো. আন্ডো মানে ব্যাকে যাবে, আর ব্যাকে সিম্বলও আছে. রিডো মানে ওই কাজটা আবার হয়ে যাবে. আন্ডো গেলাম, এইখান থেকে লাইনটা চলে গেল, রিডো গেলাম, ওটা আবার চলে আসলো. সো এখানে উইথ দ্য হেল্প অফ আইকন আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইনস্ট্রাক্ট কম্পিউটার হোয়াট অপারেশন টু পারফর্ম. তো যখন আমরা আইকনের থ্রু আমরা যখন কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাকশন দিই, অ্যান্ড আইকন কি করে, ইউজার ফ্রেন্ডলি, এটা একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি. ইউজার দেখো কমান্ড মেনলি ইউজার ক্যান নট রান দ্য কমান্ডস, বাট ইউজার ক্যান ইজিলি উইথ দ্য হেল্প অফ আইকন ইউজার ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইফ উই টাইপ দিস থিং দেন হোয়াট অপারেশন মাইট হ্যাপেন. সো ইউজার ফ্রেন্ডলি জিনিসটাকে আমরা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস. তো এটা একটা পুরোটা, এই যে স্ক্রিনে আমরা যত জিনিস দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা পুরো গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস. এখানে গ্রাফিক্সের থ্রু আমাকে বোঝাতে চাইছে, যদি এখানে কালার আমি ব্লু নিই, ব্লু হয়ে যাবে. এটা একটা আইকন, গ্রিন কালার একটা আইকন আছে. এখানে লাইন, এটা পাতগানি লাইনটা
যদি আমি একটু ঠিক করতে চাই দেন একটু बोल्ड हो যাবে আরও ये और ज़्यादा हो जाएगा बोल्ड। सो आइकन के थ्रू वो मेरे को समझाना चाह रहा है कि ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप हमको क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो हम उस हिसाब से एक्ट करेंगे। सो वो हो जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे हम ग्राफिक्स के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं। एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है क्यों? क्योंकि यूज़र को समझने में आसानी होता है कि इस चीज़ का पर्पस क्या है। बट कमांड लाइन में कि सिस्टम डॉट एग्जिट करे, ठीक है, लिस्ट DIR फिर ग्रेटर देन साइन, तो इतना कुछ याद रखना इतना कुछ याद रखना ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। बट ग्राफिक के थ्रू काम करना ह्यूमन के लिए बहुत कंफर्टेबल है। सो फॉर दैट रीज़न ये सब ग्राफिक ये टाइप का इंटरफेस है। एंड GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एंड ये एक टाइप का इंटरफेस है। इंटरफेस दो टाइप का होता है, एक होता है GUI और एक होता है CLI। CLI में कमांड लाइन इंटरफेस था। कमांड लाइन इंटरफेस क्या, वो MS-DOS कमांड लाइन इंटरफेस MS-DOS हो गया और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडोज़ हो गया। ठीक, तो GUI होगा, GUI एक यूज़र इंटरफेस है। एंड ये द रिमेनिंग 3 यह एक फाइल फॉर्मेट है, इमेज फाइल फॉर्मेट है। यहाँ पे नॉट पूछा था, फॉर दैट रीज़न GUI इज़ नॉट एन फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट। सो ठीक, এটা বলো द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़, এটা জানো क्या यहाँ पे? अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा से लिख लिया है, बट फिर भी एक बार सुन लेना अच्छा से तो कंफ्यूज नहीं होगे। सर वर्ल्ड वाइड वेब हो सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्यों होगा? और वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब तो वो होता है ना, वो वैन को कहते हैं ना, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरा दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट एक वैन का एग्जाम्पल है ना, इंटरनेट एक एग्जाम्पल है वैन का, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। सर फायर ऑप्शन बी। सर हाँ जो কোশ্চেন নাম্বার 8 এ আপনি ওই CLI টার ফুল ফর্ম কি বললেন আরেকবার একটু রিপিট করবেন? আমি এটা মনে হয় ফার্স্ট ক্লাসে দিয়ে কমান্ড লাইন কমেন্ট। ওকে স্যার। এগুলো তো দেওয়া আছে, তাই জন্য আমি লিখিনি আলাদা করে। कमांड लाइन इंटरफेस, फर्स्ट वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, फायरफॉक्स। ठीक है, तो देखो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका करेक्ट आंसर है। अभी हाँ हो रहा होगा कन्फ्यूजन कि वर्ल्ड वाइड वेब तो हम इंटरनेट को बोलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे है पूरा वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर, क्योंकि नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेनेशन है, देखेंगे। तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र अगर पूछे तो हो जाएगा फर्स्ट वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। सो अगर ये ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, हमारा एग्जाम्पल ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब का। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन था बहुत कुछ था इसमें। ठीक है, सो देखो वर्ल्ड वाइड वेब वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र। ठीक है, फर्स्ट वेब ब्राउज़र था विच वाज रीनेम्ड टू नेक्सस। इसको ना इसका वर्ल्ड वाइड वेब को वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट वेब ब्राउज़र का जो नाम था, ये उसका नाम था, फर्स्ट ब्राउज़र का नेम था, नेम वर्ल्ड वाइड वेब। लेटर इट वाज चेंज्ड टू नेक्सस। नेक्सस, ठीक है, नेक्सस। अभी इसका नाम चेंज क्यों किया? तो आज के डेट में तुम लोग जिस वर्ल्ड वाइड वेब को जानते हो, इंटरनेट है ना, तो ताकि नॉर्मल पीपल मे नॉट गेट कन्फ्यूज्ड विद दैट टर्म, सो इसका वो रीनेमिंग हुआ। तब भी वर्ल्ड वाइड वेब का मीनिंग था कि दैट इंटरनेट ओवर द वर्ल्ड, उसको हम कहते थे टर्म्ड एज वर्ल्ड वाइड वेब। वो एक सेपरेट, ठीक, मतलब तीनों का जो बेसिक नेम था सेम था, बट मीनिंग डिफरेंट ये था कैरी। तो इसीलिए जो वेब ब्राउज़र था www वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से, उसको रीनेम कर दिया नेक्सस में। ठीक है, एंड जो टिपिकली जो www का मीनिंग आज हम जानते हैं वो वही है एक्चुअल में। एंड जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था www, जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब भी, वो फर्स्ट ब्राउज़र का नाम था, उसका नाम को रीनेम कर दिया गया था नेक्सस, ताकि ओरिजिनल जिस चीज़ को हम www कहते हैं और ये जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र है, इन दोनों में किसी टाइप का कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट?
कि www जो हम कहते हैं वो वही है, बट अगर फर्स्ट वेब ब्राउज़र पूछे तो उसका आंसर भी www होगा, उसका नाम भी वेब वो होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर नेक्सस एग्जाम्पल में है, ठीक है, अगर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल www है और एक एग्जाम्पल नेक्सस है, नेक्सस इन केस अगर है, नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस ऑप्शन, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बट नहीं होना चाहिए। अगर है तो मुझे पता नहीं है ऐसा सिचुएशन में क्या करना है, बट आई थिंक कि नेक्सस के साथ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है वो मीन कर रहा हो जो इंटरनेट है www वगैरह, इसीलिए वो ये सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है। इन केस अगर ये दोनों चीज़ आ गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फर्स्ट वेब ब्राउज़र पूछा, या तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल होगा, या तो वहाँ पे नेक्सस होगा, या वहाँ पे www होगा। अगर नेक्सस है तो वो हमारा राइट आंसर होगा, अगर www है तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? ठीक, चलो। सो नेक्स्ट इसके बाद था, तो देखो जो वर्ल्ड वाइड वेब था ये ना ग्राफिक, ये इसमें ग्राफिक्स नहीं था, तो नेक्स्ट हमारा जो आया अरवाइज, ये हमारा था फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, ये फर्स्ट वेब ब्राउज़र था, एंड ये फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउज़र। And these things were developed by Tim Berners-Lee. So the scientist who invented the first browser, not World Wide Web, first browser World Wide Web, and graphic, उसका नाम था Tim Berners-Lee, and he also developed HTML. Tim Berners-Lee is the man who developed HTML. ठीक है, so Tim Berners-Lee developed three things: first web browser, HTML, and first graphic web browser also. ठीक है, अभी मोज़ेक, अभी अगर एग्जाम्पल में मोज़ेक है कि फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल है, एंड वहाँ पे अगर मोज़ेक भी है और अदरवाइज नहीं है, देखो अगर अदरवाइज है और मोज़ेक, अगर पूछा फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, उसमें या तो ये होगा या ये होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो ये वाला होगा, ये वाला होगा। अगर दोनों ही है उस केस में, इस केस में मेरे को एक्चुअली नहीं पता, इस केस में तो फिर भी था कि हो सकता है नेक्सस। इस केस में मैंने देखा कि मतलब नेट पे इंटरनेट के अकॉर्डिंग वही कहता है कि मोज़ेक में भी यही, मोज़ेक इज़ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन विथ टेक्स्ट। हो सकता है कुछ अलग से आ जाए मोज़ेक का, इन दैट केस मोज़ेक होगा, ठीक है, और सेम नहीं आएगा। और अदरवाइज रिलेटेड तो कुछ था नहीं, अदरवाइज में वही था कि इट वाज आल्सो अ फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इन ये ग्राफिक वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पे एक्चुअल एक्सप्लेनेशन मेरे को मिला नहीं क्या होगा, बस यही था। ठीक है, कि अगर फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र पूछे या तो वो अदरवाइज उसको में ऑप्शन में होगा या मोज़ेक होगा, इन दोनों में से कोई एक है तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों हुआ तो इन दैट केस आई डोंट, मतलब अदरवाइज तो टिम बर्नर्स-ली पहले डेवलप किया था, तो मेरे हिसाब से अदरवाइज होना चाहिए। बट हाँ, एक कन्फ्यूजन फिर भी रहता है। बट अगर ये दे दिया कि डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन विथ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ इन अ सेपरेट विंडो, इन दोनों में मोज़ेक और अदरवाइज में डिफरेंस ये था। सर आंसर मोज़ेक ही होगा, आपका एक्सप्लेनेशन सही है। हाँ ठीक है, हाँ तो मोज़ेक, तो अगर फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन विथ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ इन अ सेपरेट विंडो, ठीक, तो एक अदरवाइज क्या करता था ना, अगर ये एक विंडो का एक टैब है, ठीक है, हम यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन किए तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट है ना, तो वो एक विंडो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा सोचो एक विंडो यहाँ पे है, यहाँ पे एक इमेज आया और दूसरा में टेक्स्ट भी आता था, तो टेक्स्ट और इमेज दो सेपरेट विंडो में आता था। अदरवाइज में इसमें भी ग्राफिक, ये फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउज़र है, इसमें क्या होता था कि जो टेक्स्ट एंड इमेज है वो दो सेपरेट विंडो में ओपन होता था। बट मोज़ेक ने इसको ओवरकम किया, उसने क्या किया, एक ही विंडो में टेक्स्ट, ये यहाँ पे इमेज भी आएगा और नीचे में टेक्स्ट भी आएगा, इनलाइन टेक्स्ट। इनलाइन टेक्स्ट यानी वो इमेजेस के साथ साथ यहाँ पे जो इनलाइन टेक्स्ट कुछ ऐसा होता है, एक सेकेंड बता रहे हैं, इनलाइन टेक्स्ट ऐसा सोचो, ये जैसे तुम्हारा स्क्रीन हुआ, यहाँ पे अगर सोचो इमेज है
तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐसे ऐसे आएगा, ये टेक्स्ट यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे टेक्स्ट होगा, यहाँ पे टेक्स्ट होगा, एंड यहाँ तक इमेज था, तो इसके बाद फिर टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये होता है इनलाइन टेक्स्ट कि एक पार्ट में इमेज है, एंड उस पार्ट के साथ साथ ही टेक्स्ट भी है। बट अदरवाइज में क्या था, इमेजेस और टेक्स्ट दोनों सेपरेट विंडो पे ओपन होता था, सेम विंडो पे ओपन नहीं होता था। ठीक है, तो मोर कन्वीनियंटली अगर देखा जाए कि ग्राफिकल यूजर क्या था, तो मोर कन्वीनियंटली मोज़ेक ही था फर्स्ट। ठीक है, सो ये हो गया। ठीक, तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारा फर्स्ट वेब ब्राउज़र था जिसका रीनेम हो गया था नेक्सस में, ताकि पीपल को कन्फ्यूजन ना हो जो ओरिजिनल वर्ल्ड वाइड वेब का जो मीनिंग है उसके साथ। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। ही इज़ द साइंटिस्ट हु आल्सो इन्वेंटेड द मार्कअप लैंग्वेज HTML। ओके, एंड मोज़ेक वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले इमेजेस विथ इनलाइन टेक्स्ट लाइक इमेजेस के साथ साथ ही टेक्स्ट है, सेपरेट विंडो में नहीं है। अदरवाइज में क्या था, सेपरेट विंडो में था। ठीक है, और मोज़ेक में क्या था, इनलाइन था। ठीक है, दो इट वाज प्रीसेडेड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, द लेसर नोन अदरवाइज। ठीक है, तो प्रीसेडेड यानी मोज़ेक इन दोनों के बाद आया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं ना इस पार्ट में। अगर पूछे फर्स्ट वेब ब्राउज़र पूछे तो वर्ल्ड वाइड वेब बोलना। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन वर्ल्ड वाइड वेब। कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब को हम किसी और, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब कुछ और होता है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वेब ब्राउज़र पूछे दिखे तो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द करेक्ट आंसर। अगर वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्शन में नहीं है देन नेक्सस विल बी द करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट। किसी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, होने भी मत देना कि वर्ल्ड वाइड वेब ही होगा, नाम उसका है तो है। ठीक है, कोई अगर कन्फ्यूजन में दे कि वर्ल्ड वाइड वेब तो ये भी होता है, मतलब वो होता था उसका, बट इसका नाम भी यही दिया गया था, बाद में इसको नेक्सस में ये हो गया चेंज, ताकि पीपल कंफ्यूज ना हो। सिंपल कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड वाइड वेब ही होगा इसका आंसर, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पूछे तो मोस्टली मोज़ेक ऑप्शन में होगा, तो मोज़ेक ही होगा। ठीक, इसमें और किसी टाइप का आई होप डाउट ना हो। कंफ्यूज मत रहना कि वर्ल्ड वाइड वेब ये भी होता है वो भी होता है, दोनों नहीं होता है, दोनों डिफरेंट चीज़ है। नाम सेम दे दिया गया था इनिशियली, बट बाद में उसको चेंज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिया था, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम्पल से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक भी ये भी था कि विच ऑफ द फंग इज़ नॉट अ सर्च इंजिन, तो वहाँ पे था गूगल क्रोम था, याहू था, डकडकगो था और पिंटरेस्ट था। विच ऑफ द फंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजिन, वहाँ पे था गूगल, याहू, डकडकगो और था पिंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा टाइप का तो एग्जाम्पल से तो क्वेश्चन आता ही है मोस्टली। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये एक वेब ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट से। फायरफॉक्स इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र फ्रॉम मोज़िला। ये सब वेब ब्राउज़र का एग्जांपल है। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र। सर ये जो आपने ये 4 बताए, तो इसमें गूगल ये तो पता है, बट ये तीनों के बारे में नहीं। याहू के बारे में पता है कि याहू तो सर्च इंजिन नहीं है, और नहीं ये है। दोनों ये क्या है नहीं पता सर। अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया है कि गूगल, याहू, डकडकगो जितना सारा जो क्वाइट नोन है वो सब एग्जाम्पल देके मैंने लिख दिया था। ठीक है, 4-5 तो मैंने लिखा था, वो सब मैंने लिख दिया था कि ये सब सर्च इंजन है या वेब ब्राउज़र है। इसका आंसर होगा पिंटरेस्ट होगा। पिंटरेस्ट एक सोशल वेबसाइट है इमेजेस का। पिंटरेस्ट वेबसाइट तुम लोग देखे नहीं हो? पिंटरेस्ट इमेजेस नहीं सर। ओके, ठीक है, इमेजेस सर्च किए होगे तो देखे होगे कि पिंटरेस्ट एक बहुत ही पॉपुलर इमेजेस का वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक, सो वो एग्जांपल्स मैंने लिख दिया। मैंने हर जगह जहाँ पे भी एग्जांपल मेरे को पॉसिबल लगा लिखना, क्योंकि एग्जांपल से मैंने देखा क्वेश्चन आता है, तो अनेक जगह मैंने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मैंने एग्जांपल लिख दिया, क्योंकि वहाँ से आता है तो मेरे को यही सूटेबल है कि मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ताकि मतलब ऐसा कन्फ्यूजन ना हो। और ये लोग बहुत अजीब एग्जांपल देते हैं, बहुत मतलब पुराना ज़माना का, कि मतलब किसी को नॉर्मल स्टूडेंट को भी वो नहीं आएगा। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब अगर कोई पूछता ऑप्शन में होता, अब जो पढ़ा है उसी को आएगा। मेरे को भी नहीं आता था, मैं भी एक सेकेंड के लिए मैं भी कन्फ्यूज़ था कि वर्ल्ड वाइड वेब नाम था। ये लोग बहुत पुराना ही चले जाते हैं एकदम स्टार्टिंग में जहाँ से स्टार्ट हुआ था। फॉर दैट रीज़न एग्जाम्पल इन लोग का क्वेश्चन के लिए तो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने हर जगह एग्जाम्पल लिख दिया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो जाएगा हमारा, फायरफॉक्स भी हो जाएगा, ठीक है, एंड गूगल क्रोम, ओपेरा, तो ये सब है। और सम एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउज़र एंड नेटस्केप। तो नेटस्केप भी देता है, देखो तो ये देखो, ये 1 2 3 4 इन चारों के साथ मोस्टली ऑफ अस फैमिलियर है, बट ये नेटस्केप थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो हाई चांसेस है कि वो ऑप्शन में नेटस्केप देंगे।
ठीक है, हाई चांस है, जो कि देते हैं वो लोग, तुम देखे होगे क्वेश्चन पेपर में, देखे नेटस्केप है, इनफैक्ट इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया, फिर भी वो लोग देते हैं, ठीक है। तो जो थोड़ा सा ऑड चीज़ लगे उसको ट्राई करो, उसको मतलब थोड़ा याद करने का ट्राई करो कि ये भी एक एग्जाम्पल होता है, क्योंकि जो नॉर्मल जो तुम यूज़ करते हो वो तो तुमको ब्रेन में होगा ही, उसको हिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट जो थोड़ा अनइवन सा जैसे नेटस्केप हो गया, ये सब हिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउज़र, तो यहाँ के फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउज़र भी देखिए अगर देखें, ठीक है, तो उसका आंसर भी होगा नेटस्केप। तो मैंने जितना इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हुआ तुम लोग के, ठीक है, तुम लोग के लेवल के लिए जितना भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मेरे को लगा ये आ सकता है, तो वो मैंने सब कुछ लिख दिया एक्सप्लेनेशन पार्ट में। तो MCQs के अगर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ोगे तो उस वहाँ से भी बहुत सारा चीज़ या तो रिवाइज हो जाएगा या कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगा ही, ठीक है। तो नेटस्केप हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स और सिंपली फायरफॉक्स इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र डिस्प्ले, ये तो मैंने शायद लिखा था। अच्छा, इसका आंसर व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग बायोस इज लोडेड इन द मेमोरी बाय, हेलो आवाज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। सर बोटिंग का क्या मीनिंग है? बूटिंग ये लास्ट क्लास में मैंने अच्छा से एक्सप्लेन भी किया था, ये मैं आई थिंक मतलब बहुत बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया लास्ट क्लास में, तो मैंने फिर से अच्छा से एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास का में भी, ये MCQ था, देखे नहीं सर लास्ट? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों? सर ऑप्शन बी। सेम MCQ मैंने लास्ट क्लास में दिया था, बूटिंग लास्ट क्लास में भी सेम था कि बायोस इज लोडेड टू द मेमोरी बाय, व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग बायोस इज लोडेड टू द मेमोरी बाय। बायोस किसके द्वारा लोड किया जाता है? बायोस मतलब बायोस प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होता है? नहीं पता है, कम में कोई ये रोम बी। हाँ, हाँ, तो ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रोम होता है। अगर बूटिंग, तो मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि अगर बूटिंग और बायोस रिलेटेड कोई ऑप्शन हो, बूटिंग एंड बायोस रिलेटेड যদি তোমরা কোনো কোশ্চেন পাও ওর সিম্পলি অ্যান্সার রমই হবে। বুটিং বা বায়োস রিগার্ডিং যদি কোনো কোশ্চেন থাকে মোস্টলি কেসেসে ওর आंसर रोम হবে। रोम रोम में बायोस एक प्रोग्राम है, बायोस एक प्रोग्राम है जो रोम में स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो बायोस एक प्रोग्राम है, बायोस एक प्रोग्राम है, ठीक है, बायोस एक प्रोग्राम है जो रोम में स्टोर्ड होता है। रोम में स्टोर्ड इसलिए किया जाता है ताकि उसको कोई भी जो यूज़र है उसको उसके साथ किसी टाइप का छेड़छाड़ ना कर सके, नहीं तो फिर कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो बूटिंग मतलब होता है कि स्टार्टिंग, देखो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, अचानक से तुम स्विच ऑन किए पावर बटन दिए वो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उसको कहते हैं बूटिंग। जो वो पूरा प्रोसेस है ना स्टार्टिंग का, बूटिंग लोडिंग विंडोज़ तक, लोडिंग विंडोज़ तक, वो जो रैम पे विंडोज़ को वो लोड करता है, वो पूरा प्रोसेस को बूटिंग रेफर किया जाता है। बूटिंग, अब बूटिंग होता कैसे है, वो जो ये बायोस प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के थ्रू बूटिंग होता है। ये कहाँ पे स्टोर होता है? रोम में होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में तो ये बताया था, मैं मल्टीपल टाइम मैं अभी तक बता चुका कि बायोस एक प्रोग्राम है जो रोम में स्टोर होता है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ताकि बायोस प्रोग्राम के साथ कोई किसी टाइप का छेड़छाड़ ना कर सके। एंड ये यूटिलाइज कब होता है? व्हेन द कंप्यूटर इज अबाउट टू स्टार्ट, या स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर, जिसको बूटिंग भी कहते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर का एक अल्टरनेट नाम है बूटिंग। बेसिकली बूटिंग को इस्तेमाल किया जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या क्या। So BIOS basic input output system program a computer microprocessor uses to start computer system after it is powered on, also manages the data flow between the computer OS and attached devices such as hard disk, video adapter, keyboard, mouse and printer.
ठीक है। तो ये सब चीज़ को भी वो लुक आफ्टर करता है अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे मैंने रोम के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह लिख के दिया है कि नॉन वोलेटाइल है एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाइड। रैम और फिर रैम के बारे में तो जितना सारा ऑप्शन था सबके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा लिख के दिया है ताकि एक वो रिविजन हो जाए। ठीक है, ये सब हो गया रैम रोम के बारे में। ये रैम के बारे में भी है और CD, ये तो CD रोम के बारे में। CD वगैरह तो नहीं चाहिए वो सब। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज द अदर थ्री। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझे तो मेरे को बताना कि किसको समझ में नहीं आया। रीड करो, 1 मिनट रीड करो और समझने का ट्राई करो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज द अदर थ्री। ठीक है, 1 मिनट दो और ये समझने का ट्राई करो। समझ में आ गया तो ठीक है। मतलब सर और वन ना? हाँ, सिमिलर केस में अगर पूछे तो हुआ ऑड वन। इनमें से कोई एक স্যার অ্যান্সার কি আইপি অ্যাড্রেস হবে? অ্যান্সারটা আমি বলছি, এই জিনিসটা আমি এখনো করাইনি। স্যার আইপি অ্যাড্রেস। ठीक है, ओके आईपी एड्रेस तो एटा नहीं कोनो इशू नहीं। ये ये अभी तक मैंने ये टॉपिक ये नहीं किया कवर, तो मैंने लिया है तो अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो एनीवन एनी गेस आईपी एड्रेस একজন ভুগেছে? ठीक है, कोई कमेंट? सो तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है मैक एड्रेस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मैक एड्रेस। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैक एड्रेस होता क्या है। एंड नहीं, विच ऑफ द इज नॉट सेम एज द अदर थ्री है ना, नॉट सेम एज द अदर थ्री वो है आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस। एंड ये जो तीन है इन तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, एंड जो मोस्ट कॉमन टर्म है इन तीनों का वो है मैक एड्रेस। दिस इज मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। दिस इज द मोस्ट मैक इज द मोस्ट कॉमन नेम फॉर दिस हार्डवेयर एंड फिजिकल एड्रेस। अभी देखो, अभी जितना भी वर्ल्ड में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है ना, सब पे एक फिजिकल एड्रेस होता है। सब पे एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको कहते हैं मैक एड्रेस। उस मैक एड्रेस के थ्रू इंफॉर्मेशन पता चल जाता है कि यूजर मतलब उस, और ये मैक एड्रेस इनपुट किया जाता है, এইটা ইনপুট করা হয় বাই ম্যানুফ্যাকচারার। যখন যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস যখন যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস তৈরি হয় তার মধ্যে একটা ম্যাক অ্যাড্রেস ফিড করা হয় ফ্রম দ্য সাইড অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার which cannot be changed, okay, which cannot be changed is it's মানে ম্যাক অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে এটা একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস, এটা এর একটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস। তো উইথ দ্য হেল্প অফ দ্যাট অ্যাড্রেস এনিওয়ান ক্যান ইজিলি গেট টু নো কি ওই ডিভাইসটা কি কোথায় ইউজ হচ্ছে সব কিছু। অ্যান্ড এটা বেসিক্যালি ইউজ হয় যখন তুমি ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজনে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ভয়েস অ্যাসোসিয়েটে যখন করো কাজ, ইয়া যে কল সেন্টারের যে কাজগুলো হয় ওরা কি করবে, ওরা যখন ট্রেনিং সেশন থাকে, ঠিক আছে, ওরা যখন ট্রেনিং সেশন থাকে ওরা ম্যাক অ্যাড্রেসের কন্ট্রোল নিয়ে নেয়। ম্যাক অ্যাড্রেসের কন্ট্রোল নেওয়ার পরে কি হয়, তুমি নিজের কম্পিউটারে কোনো এক্সটার্নাল জিনিস, ঠিক আছে, কোনো ধরনের যদি ম্যাক অ্যাড্রেস যদি কেউ কারো অ্যাক্সেসে থাকে আর ও যদি ম্যাক অ্যাড্রেসে কিছু ইনফরমেশন ফিড করে দেয়, তো তুমি না চেয়েও ওই কম্পিউটারে কিছু এক্সটার্নাল জিনিস ইনপুট করতে পারবে না। ঠিক আছে, ম্যাক অ্যাড্রেস মানে আমি ধরো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন ধরো কি একজন ফ্লিপকার্টে ভয়েস অ্যাসোসিয়েটের কাজ করছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম, ওর ট্রেনিং সেশনে কী হবে, ওর যে ফিজিক্যাল ওর যে ল্যাপটপের বা কম্পিউটার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা নিয়ে নেওয়া হবে। অ্যান্ড ওই ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসে যখন তুমি কিছু অন্য জিনিস, তুমি যখন কিছু ইউএসবি ইনসার্ট করবে বা অন্য কিছু জিনিস যখন তুমি রান করতে চাইলে বা কিছু ইনস্টল বা আনইনস্টল করতে চাইলে তুমি দেখবে ওটা হবে না,
ওরা সিস্টেমটাকে এইভাবে করে দেয় কি ওদের যে সফটওয়্যার ওরা যেই অ্যাক্সেসগুলো দিয়ে রয়েছে শুধু ওই অ্যাক্সেসগুলোর উপরে কাজ করবে और एल्स इट विल नॉट वर्क। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है जो हर एक डिवाइस पे होता है और ये मैन्युफैक्चरर द्वारा जो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे होता है मैक एड्रेस, और जो उस डिवाइस को मैन्युफैक्चर करता है वो उसके द्वारा ही उसमें इनपुट किया जाता है। ठीक है, इसको हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। एंड आईपी एड्रेस मतलब हमें पता ही है, आईपी एड्रेस मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कि ये एक ओवर द इंटरनेट एक डिवाइस कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये उसका एड्रेस हमें बताता है। ओवर द इंटरनेट कोई एक डिवाइस है, उसका आईपी एड्रेस से हम पता कर सकते हैं कि उसका लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओवर द इंटरनेट। एंड ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एंड इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड, एंड इसको चेंज किया जा सकता है बाय सम मीन्स, ठीक है, ऐसे रैंडमली चेंज कर सकते हैं बाय सम मीन्स। लाइक VPN एक हो गया, VPN यूज़ किया हो ना, तो VPN से क्या हो जाता है, IP, ठीक है, IP रीड आउट हो जाता है। लाइक अगर तुम इंडिया में हो तो VPN का यूज़ करोगे तो वो दिखाएगा कि तुम्हारा जो डिवाइस का लोकेशन है वो समवेयर, जिस भी कंट्री का VPN से तुम आउटर सर्वर से कनेक्ट करोगे वो वहाँ पे वो तुम्हारा दिखाएगा, तुम्हारा जो डिवाइस है वो वहाँ पे है। और सपोज अमेरिका हो गया या सिंगापुर हो गया जहाँ तक का भी VPN तुम यूज़ कर रहे हो तुम्हारा डिवाइस का लोकेशन वहाँ पे दिखा देगा, बट एक्चुअली में तुम इंडिया में ये हो, प्रेजेंट हो, तो बेसिकली इसका ये एक्चुअल जो डिवाइस का लोकेशन है उसको छिपा देता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मैंने लिखा कि आईपी एड्रेस एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, इज अ न्यूमेरिक लेवल असाइंड टू ईच डिवाइस अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। The IP address is managed by globally by the Internet Assigned Numbers Authority IANA and 5 regional internet registers। ठीक है, आई थिंक ये रजिस्ट्रार होगा शायद, स्पेलिंग मिस्टेक। तो देखो एक आईपी एड्रेस तो ये हो गया, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस and assigned to each device on a computer network that uses the internet protocol for ये communication। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, लोकेशन, एंड ये हाइड भी किया जा सकता है, जिसका सबसे इजी एग्जांपल है विद द हेल्प ऑफ VPN। ठीक है, इसको हाइड भी कर सकते हैं, ओरिजिनल आईपी को हम हाइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ VPN। एंड एक आईपी एड्रेस कुछ इस टाइप का दिखता है 192.158.1.38। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में और बताता हूँ। और एक यहाँ पे है MCQs में और एक क्वेश्चन है जहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में पूछा गया, तो वहाँ पे मैं इसको और एलैबोरेट करूँगा कि ऐसा है क्यों। ठीक है, इसका ऐसा होने का रीज़न क्या है आईपी एड्रेस का। तो फंक्शन ऑफ आईपी एड्रेस क्या है, सॉरी, आइडेंटिफाइज द होस्ट, मोर स्पेसिफिकली इट्स नेटवर्क इंटरफेस, इट प्रोवाइड्स द लोकेशन ऑफ द होस्ट इन द नेटवर्क, लोकेशन ऑफ द होस्ट इन द नेटवर्क। ठीक है, तो कोई एक होस्ट है, जो होस्ट यहाँ पे किसको कह रहे हैं, वो कंप्यूटर को होस्ट कहते हैं। कि जब एक मशीन इंटरनेट से ये हो जाता है, एक मशीन जब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं होस्ट। ठीक है होस्ट कहते हैं। तो टू इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन कॉमनली इन यूज, ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वाज द फर्स्ट वाइड एरिया पैकेट। ये देखो, ये फर्स्ट वाइड एरिया पैकेट स्विचिंग नेटवर्क with distributed control and one of the first network to implement the TCP/IP protocol suite। तो ARPANET एक वो फर्स्ट ये था इंटरनेट प्रोटोकॉल था जो वहाँ पे TCP/IP यूज़ किया गया था। एंड ये US का जो वो मिलिट्री ऑपरेशंस कुछ हो रहा था, आई थिंक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तब उनको एक नीड था कि वो इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते थे। फ्रॉम देयर ये कम्युनिकेशन वाला कंसेप्ट है ना, ये वहाँ से अराइज हुआ कि US का मिलिट्री डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना था विदाउट गेटिंग अदर्स नो एंड फ्रॉम अ रिमोट प्लेस टू अदर रिमोट प्लेस। तो वहाँ से ये TCP/IP का ये जो
ये स्टार्टिंग है वहाँ से वो हुआ था, बबल आउट हुआ था। तो इनिशियली ये बस ये अमेरिकन्स को जो मिलिट्री लोग हैं वही लोग यूज़ करते थे। तो ये ARPANET एक हो गया। यहाँ पे बस 2 ही दिया हुआ है एक्चुअली में, और भी होता है, 3 होता है, अभी तक 3 आ गया, IPv6 भी आ गया, ठीक है। एंड इंटरनेट IPv4 क्या है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक वर्जन है। IP वर्जन V4 ये 4 वर्जन है। एंड अभी और एक IP वर्जन 6 है। अभी देखो IP वर्जन 4 है, वर्जन 6 है, तो वर्जन 4 और वर्जन 6 में बेसिक अंदर क्या पता है कि जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द कोर प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड नेटवर्किंग मेथड इन द इंटरनेट एंड पैकेट स्विच नेटवर्क। तो ये हमको पता है कि इंटरनेट का यूज़ क्या है। अभी वर्जन 4 वर्जन 6 में मेन अंदर क्या है, देखो IP4 जो नंबर ऑफ डिवाइसेस है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैं इसको अगर मोर प्रॉपर लिखूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो IPv4 के केस में क्या था, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस था। अभी देखो अभी जितना सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओवर दी इंटरनेट कनेक्टेड है, सबको IP एड्रेस एक असाइन करना है ताकि उसका लोकेशन पता चल सके। बट IP वर्जन 4 में उतना सारा एड्रेस अवेलेबल ही नहीं था। ग्रोइंग ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को देखते हुए जो इसको मैनेज करते हैं IANA, उन्होंने देखा कि अगर इस हिसाब से अगर डिवाइसेस लाइक मार्केट में अवेलेबल, अगर प्रोडक्ट यूज़र इतना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वन पॉइंट ऑफ टाइम जाके हर एक यूज़र के पास इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो जाएगा कि हमारे पास उतना सफिशिएंट IP एड्रेसेस है ही नहीं कि हम हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड कर सके। ये रीज़न था कि IPv4 के बाद IPv6 आया। IPv6 में क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एड्रेसेस है ना, नंबर ऑफ IP एड्रेसेस, ये बहुत ही लार्ज है। लाइक अगर एक पीपल अगर मिलियंस डिवाइसेस भी यूज़ कर रहा है, एक पीपल अगर मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, इफ वन पर्सन इज इवन यूजिंग मिलियंस, आई थिंक एज मच एज मेरे को जहाँ तक याद है, इफ वन पर्सन इज इवन यूजिंग मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, देन IPv6 में इतना सारा एड्रेस है कि टोटल आज के टाइम में जितना अभी तक पॉपुलेशन है, कि सोचो सबके पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो IPv6 में इतना सारा एड्रेसेस है ना कि उनको ये सफिशिएंट है कि वो सभी आज के टाइम में अगर हर एक इंसान 1 मिलियन डिवाइसेस भी यूज़ करे तो सफिशिएंट है कि उतना सारा इसमें एड्रेसेस है कि वो सबको अलॉट कर सकते हैं, हर एक को एक यूनिक IP एड्रेस सफिशिएंट है। तो IPv4 IPv6 में मेन अंतर यही है कि 4 में नंबर ऑफ डिवाइसेस वो रिड्यूस हो जा रहा था पॉपुलेशन को नज़र में रखते हुए, बट 6 में क्या है, इफ़ वन पर्सन इज इवन यूजिंग मिलियंस ऑफ डिवाइसेस देन ऑल्सो सफिशिएंट है सबको एक IP एड्रेस अलॉट करने के लिए। अगर इस वर्ल्ड में अभी इस टाइम पे अगर हर एक यूज़र मिलियंस ऑफ डिवाइसेस पे यूज़ कर रहा हो तो भी ठीक है सबको। স্যার একটা एग्जांपल দিন না। एग्जाम्पल बोलते এই যে বলছেন যে এক একটা রকম আইডি, সেইটার একটা এক্সাম্পল কি দেওয়া যাবে? যে আগে বলছিলেন মানে সবটা অ্যাক্সেস করতে পারতো না, এখন প্রত্যেকটা পার্সনের এক একটা আইডি দিয়েছে, তো না না ওটা না কি মানে না 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 এক্সাম্পল দেওয়া যাবে? আমি সেটা বলছি না, সে অ্যাক্সেসের ব্যাপারে না। এই দেখো এটা IPv4, এখানে দুটো লেখা আছে তো IPv4, এই ছাড়া আরেকটা হয় IPv6। তো এই দুটোই ইন্টারনেট প্রোটোকলের ভার্সন, এটা হচ্ছে ভার্সন 4, এটা হচ্ছে ভার্সন 6। আমি বেসিক্যালি এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য বলছি। দেখো IPv4 এর ক্ষেত্রে কি ছিল কি, ভাবো আমার কাছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে, তো প্রত্যেক কটা ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে আমাকে একটা করে IP অ্যাড্রেস দিতে হবে, ঠিক আছে। সো যারা এই যে জিনিসে কাজ করে এখানে আছে তো এই যে তো বেসিক্যালি ये इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी IANA। সো পপুলেশন গ্রোথ হচ্ছে, পপুলেশনের গ্রোথ হচ্ছে, ঠিক আছে, পপুলেশনের গ্রোথ হচ্ছে অ্যান্ড পপুলেশনের গ্রোথ হচ্ছে, ইলেকট্রনিক ডিভাইসেও গ্রোথ হবে। সো ওই IANA ওরা দেখলো যদি গ্রোথ রেটটা এইভাবে থাকে দেন এই ভার্সনে যতগুলো আমাদের কাছে অ্যাড্রেস অ্যাভেলেবল আছে IP অ্যাড্রেস, ঠিক আছে, IP অ্যাড্রেস লুকটা কিছু এরকম হয়, এরকম কিছু লুক হয় 192.158.1.38, ঠিক আছে, এরকম কিছু লুক হয়। তো এইটা হচ্ছে একটা IP অ্যাড্রেস। তো যদি এইভাবে যদি গ্রোথ হয়
অ্যান্ড এইভাবে সরো ইলেকট্রনিক ডিভাইসও ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে এই সেম রেটে। দেন আইপিভি ভার্সন 4 এর ক্ষেত্রে এতগুলো অ্যাড্রেস অ্যাভেলেবল নেই কি এই যে গ্রোথটাকে ওরা ওরা ম্যানেজ করতে পারবে, ঠিক আছে? মানে ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম গিয়ে গ্রোথ ইনক্রিজ হতে থাকবে, বাট এদের কাছে অ্যাড্রেসটা সিজ হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, এদের কাছে অ্যাড্রেসটা শেষ হয়ে যাবে। ফর দ্যাট রিজন IPv6 কে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। IPv6 এর ক্ষেত্রে কি আছে, যদি একটা পার্সন যদি মিলিয়নস অফ ডিভাইসও ইউজ করে, তাহলে এখানে তাহলে এখন ওয়ার্ল্ডে পপুলেশন কত 700 বিলিয়ন। তো এইখান থেকে যদি পার হেড এখানে যদি 700 বিলিয়ন ইউজার যদি 1 মিলিয়ন ডিভাইস এরা ইউজ করে, দেন IPv6 এ এতগুলো অ্যাড্রেস রয়েছে যে ওরা এই নিডটাকে মানে পার পার্সন ক্যান ইউজ আপ টু 1 মিলিয়ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস, এই যে নিডটাকে এইটাকে ওরা ফুলফিল করতে পারবে। IPv4 অ্যান্ড IPv6 এ এইটাই পার্থক্য রয়েছে, যে মেন ডিফারেন্সটা। স্যার যেমন ফোন হারিয়ে গেলে কি ওই আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে খোঁজা হয়? না, ফোন হারিয়ে গেলে আইপি অ্যাড্রেস থেকে খোঁজা না। আইপি অ্যাড্রেস তখন অ্যালট করায় যখন যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস যখন ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট হয়ে যায় তখন ওটাকে একটা আইপি দিয়ে দেওয়া হয়। ফোন হারিয়ে গেলে ওটা আইপি অ্যাড্রেস যদি ইন্টারনেট কানেকশন থাকে, যদি ঠিক আছে, ওটা বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে আইপি অ্যাড্রেসের থেকে ওরা বেশি খুঁজে পায় না, ওরা হচ্ছে সিমের কিছু একটা থাকে, সিম রিলেটেড কিছু থাকে, ওইটা থেকে ওরা বেশি মনে হয় আমার फोन हारिए गए IMEI नंबर से खोजा। हाँ, आईपी एड्रेस में बेसिकली वो पता चलता है कि अगर कोई हैकर वगैरह कुछ काम होता है ना, कि अगर हैकिंग वगैरह कोई काम होता है तो उस केस में आईपी एड्रेस से अगर वो हैकर उतना सफिशिएंट नहीं, क्योंकि आईपी एड्रेस को आईपी एड्रेस VPN से हम लोग भी छुपा सकते हैं, तो आईपी एड्रेस को छुपाना कोई बड़ा डील नहीं है, ठीक है? तो फ़ोन के केस में आईपी को देखो, अगर किसी को फ़ोन मिला वो सबसे पहले क्या करेगा, वो जो सिम कार्ड निकाल के फेंक देगा और फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देगा। तो जब उसके पास इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं तो वो ट्रैक तो होगा ही नहीं ना, IPv4 का मतलब वो होगा ही नहीं, वो इंटरनेट पे आएगा तभी वो एक्सेस हो सकता है। अगर इंटरनेट एक्सेस ही हम वहाँ से उसका फ़ोन से हटा दिए तो वो तो अनट्रैकेबल हो जाएगा इंटरनेट के थ्रू, ठीक है? बट और फ़ोन का अगर वो होता है दूसरा कुछ IMEI होता है, उससे होता है, और भी होगा बहुत, और भी थोड़ा कुछ होगा, नेटवर्क कुछ होगा कुछ, अब उतना ज़्यादा डिटेल में मेरे को पता नहीं है। बट IPv4 IPv6 में बेसिकली यही अंतर है, यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ था, बट एक और होता है IPv6 में बहुत सारा मेमोरी एड्रेसेस है, IP एड्रेसेस है, इतना है कि अगर हर यूज़र 1 मिलियन करके डिवाइस यूज़ कर रहा है, 700 बिलियन पीपल है एंड हर पीपल 1 मिलियन डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, तो ये उस नीड को भी फुलफिल कर सकता है। IPv6 में इतना सा एड्रेसेस है। IPv4 IPv6 में मेन अंतर यही है कि इसमें एड्रेसेस कम है और इसमें एड्रेसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक? तो ये IP एड्रेस का हो गया। और इसका मैक का होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, यूनिक आइडेंटिटी, ये यूनिक होता है, ठीक? ये याद रखो, ये इज अ यूनिक आइडेंटिफायर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC का, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फॉर यूज एज अ नेटवर्क एड्रेस इन कम्युनिकेशन विद इन द नेटवर्क सेगमेंट, ठीक है? हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है मैक एड्रेस। The MAC address ensures that the computer device's physical location, it helps to identify given device on that available network uniquely, ठीक है? MAC address is manufactured into every network card such as Ethernet card, Wi-Fi card, therefore cannot be changed. जैसे मैंने कहा it cannot be changed, और ये unique होता है, unique, ठीक है? It's unique for each and device. And MAC address are recognizable as 6 groups, देखो 6 groups, 2 hexadecimals डिजिट सेपरेटेड बाय हाइफेंस, कोलन्स और विदाउट अ सेपरेटर, ठीक? तो यहाँ पे देखो मैक एड्रेस का एक एग्जांपल, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? 00:1B इस टाइप का कुछ दिखे तो ये IP एड्रेस नहीं होगा, ये मैक एड्रेस हो जाएगा, ठीक है? ये मैक एड्रेस है, ठीक? 001B44 हेक्साडेसिमल, मेन हेक्स, इसमें हेक्स होता है एंड IP में हेक्स नहीं होता, IP में 2 to the power 8 256, ठीक है? IP में वो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें ये फ्रेम चेक सीक्वेंस, आई डोंट थिंक मैंने कभी देखा है क्वेश्चन में, पोर्ट नंबर शायद आ सकता है, एंड URL तो पूछा जाता है कि URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई वेबसाइट, सिमिलर टू होम एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई समवंस मेलिंग एड्रेस। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बेसिकली एक यूनिक एड्रेस है टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है?
तो मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस में आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैक एड्रेस मैक एड्रेस का कुछ ऐसा होता है जिसमें हेक्साडेसिमल होता है, सेपरेटेड बाय विदाउट अ सेपरेटर भी हो सकता है, कोलेंस भी हो सकता है, हाइफेंस भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकता है, और 2 हेक्साडेसिमल्स, 6 ग्रुप्स ऑफ 2 हेक्साडेसिमल। तो 6 ग्रुप होता है, पहला बात तो ये 1 2 3 4 5 6। एंड आईपी एड्रेस में 4 ही होता है, 6 नहीं होता है, ठीक। तो अगर एग्जाम्पल दे दे कि विच ऑफ द नेम व्हाट काइंड ऑफ एड्रेस टाइप इज दिस, तो इजीली 6 ग्रुप हुआ तो मैक एड्रेस होगा, एंड 4 ग्रुप हुआ तो आईपी एड्रेस होगा। एंड आईपी एड्रेस में भी वो सही होना चाहिए। आईपी एड्रेस में सही होने का भी मैं बता रहा हूँ, आईपी एड्रेस में कौन सा ये होगा प्रॉपर वाला शायद यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन में जैसे देखो अभी यहाँ पे 4 आईपी एड्रेस है, ठीक है। आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन है, तो आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस मतलब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे कौन सा सही है। तो एनीवन कोई गेस करना चाहता है आईपी एड्रेस कौन सा वाला सही है, কোনটা সঠিক? যদি তোমরা এইটা তো না, এটা তো অ্যাট দ্য রেট আছে, অ্যাট দ্য রেট তো হয় না, এখানে হাইফেন রয়েছে, এটাও হবে না। সো আইদার দিস অর দিস। সো এনিওয়ান নাও একটা নাও, গেস নাও ए বা सी থেকে। सर ए। ए ठीक है ए क्यों होगा, सी क्यों नहीं होगा? ए में ऐसा क्या है जो सी में नहीं है? ठीक है, तो देखो आईपी एड्रेस का जो लुक होता है, यहाँ से थोड़ा देखो, ये डॉट ठीक है 4, ठीक है। सो द आईपी एड्रेस ये 4 ग्रुप में होता है, एंड इसका जो मैक्सिमम है, एक ग्रुप में मैक्सिमम जो नंबर हम लिख सकते हैं कितना, एनी आइडिया? 256, सी। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम कुछ भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इससे कम तुम कुछ भी बना दो, सब आईपी एड्रेस है। लाइक कुछ कुछ रिजर्व है, लाइक वो डिफरेंट क्लासेस है, आईपी एड्रेस का क्लासेस भी होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। कुछ रिसर्च, कुछ आईपी एड्रेस है जो रिसर्च पर्पस के लिए होता है, कुछ होम मतलब कुछ है कि होम, जैसे 127.0.0.1 ये है होम के लिए आईपी एड्रेस, जो लोकल नेटवर्क है उसके लिए आईपी एड्रेस है। कुछ कुछ होता है ठीक है, और कुछ कुछ होता है वो ऐसा पर्टिकुलर टू मतलब इन जनरल यूज़ के लिए है। तो ये डिफरेंट क्लासेस होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी एड्रेस हम रैंडमली उठा सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ कुछ एक रेंज है कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज ये जनरल यूज़ का जाएगा, ये होम यूज़ का जाएगा, एंड ये रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व्ड है। एंड उसको 3 डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन किया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो उतना डिटेलिंग में नहीं है, बस ये एक ही अभी तक हम एक ही क्वेश्चन देखें। तो अगर इससे और ज़्यादा टाइप का दिखे या तुम लोग को दिखे तो मेरे को क्वेश्चन भेजा करना, ठीक है, कि अगर कुछ भी उठ पटांग सा क्वेश्चन दिख रहा है तो द मैक्सिमम विच वी कैन रिप्रेजेंट, ये तो 4 ग्रुप में होता है। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 4 ग्रुप होगा एंड सेपरेटेड बाय डॉट ना, एंड नथिंग एल्स, ओनली डॉट। जैसे हेक्साडेसिमल में था, कोलन भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, हाइफन भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ डॉट हो सकता है। तो इसमें हाइफन था तो इसीलिए ये बाद यहाँ पे एक एट द रेट था तो इसीलिए ये चला गया। एंड इन दोनों में देखें कि हम इन दोनों में सेम जैसा है, तो सेकेंड डिफरेंस क्या होता है कि मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेशन है वो 256 हो सकता है, 256 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो 300 है ना, तो ये तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 202, ये वाला सी, 202.50.20.148। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि 32 बाइनरी बिट्स विच कैन डिवाइड इनटू अ नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन विद द सबनेट विद द हेल्प ऑफ अ सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क का अगर ये इसका देखो, इसका मतलब होता है कि आईपी एड्रेस को अगर हम हाफ पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है। सबनेट मास्क मतलब ये होता है कि एक होता है नेटवर्क पोर्शन एंड एक होता है होस्ट पोर्शन। अगर आईपी एड्रेस को बीच से डिवाइड करें तो जो हाफ पार्ट है वो नेटवर्क पोर्शन देता है, हाफ पार्ट बताता है कि वो होस्ट कौन है, कि वो जो कंप्यूटर कहाँ से वो एक्सेस किया जा रहा है, एंड जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है वो बताता है वो किस नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है। उसी का मतलब होता है सबनेट मास्क। आई डोंट थिंक ये सब आएगा, ठीक है। एंड अच्छा, यहाँ से भी तुम एक चीज़ समझ सकते हो कि 8 बिट इसका जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होता है 32 बाइनरी बिट, ठीक है। 1 ऑक्टेट इक्वल्स टू 8 बिट। तो जैसे ये जो यहाँ से यहाँ तक अगर इसको रिप्रेजेंट करें ना, तो ये 1 ऑक्टेट हुआ,
एक ऑक्टेट, ये सेकेंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट, ये फोर्थ ऑक्टेट। तो टोटल ऑक्टेट कितना सा हो रहा? 8 4 32, ठीक है, 32 बाइनरी बिट्स। तो देखो तुम यहाँ से कह सकते हो कि अगर एक ऑक्टेट में, ठीक है, एक ऑक्टेट में अगर 8 बिट होता है, 8 बिट, ठीक, तो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 8 बिट का? 8 बिट को हम अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 बिट से अच्छा 8 बिट से जो मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो होगा क्या? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यही होगा ना, मतलब 8 बिट से, मतलब बिट्स या तो 0 या 1, तो मैक्सिमम 8 तो ये होगा 1 होगा, मिनिमम होगा 8 तो 0। तो आईपी एड्रेस को हम ऐसे बिट वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये कितना हुआ? 0 1 2 3 4 5 में हुआ 32 64 128 256। तो मैक्सिमम देखो 2 to the power 8 जाएगा तो 256, तो मैक्सिमम हम लोग लिख सकते हैं 256, ठीक है। तो इतना कुछ का नीड नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि आईपी एड्रेस जो होता है 4 ग्रुप में होता है, ठीक है, इसका ग्रुपिंग होता है 4 सेपरेटेड बाय डॉट एंड एनी वैल्यू कैन नॉट टेक मोर देन 256, ठीक है। अगर 250 मतलब ये जो चारों ग्रुप है, चारों ग्रुप 256 से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। या तो 256 होना चाहिए या लेस देन इक्वल्स टू 256 होना चाहिए, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 256 मैक्सिमम। तो आईपी एड्रेस समझ में आया कि मतलब जो मेन जो थोड़ा बहुत है कि 4 ग्रुप होगा, हर एक ग्रुप को डॉट से सेपरेट होना चाहिए, और जो हर एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन है मैक्सिमम हम 256 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर एक ग्रुप में, 256 से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। एंड ऐसा बात नहीं है कि आईपी एड्रेस को बस उसमें रिप्रेजेंट होगा नंबर सिस्टम में, वो उसको हम बिट में भी एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बिट में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने लिख के दिया है, अगर पढ़ना चाहो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के और थोड़ा सा समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो उतना ही है, ठीक। तो अच्छा, ये आईसीटी से मैंने एक क्वेश्चन देख रहा था, ठीक है, यहाँ पे कुछ मतलब बहुत सारा टाइप का कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। ये स्टेटमेंट या स्टेटमेंट टू, जो आईसीटी का जो कुछ स्टेटमेंट्स होता है, आईसीटी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट टाइप होता है ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, मतलब बहुत इसका जो ऑप्शन होता है बहुत वियर्ड होता है, ईजीली कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का एक है कि स्टेटमेंट 1 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड the right to use a piece of software is termed as copyright. Any guesses? कोई guess करना चाहते हो? अच्छा फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला तो पता होगा ना, सेकंड वाला रहने देते, फर्स्ट वाला आईसीटी। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, याद रखना, ठीक है, आईसीटी है ना, आईसीटी इसके नीचे आता है आईटी, ठीक है। तो ये ब्रॉडर है, यह है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है? जैसे देखो सबसेट का है कि जैसे फूड में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, फूड का एग्जांपल है, ठीक है, राइस, ऐसे एग्जांपल है चिकन, राइस आ गया, CHICK, चिकन, एग, पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो, टोमेटो। अगर यहाँ पे मैं अगर बोलूँ और कुछ सोचो, कुछ स्पाइसेस भी है, स्पाइसेस, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बिरयानी, तो बिरयानी में क्या क्या होता है? राइस होता है, चिकन या मटन ये सब होता है, और होता है सैलड होता है। तो हम कह सकते हैं बिरयानी इज़ अ सबसेट ऑफ फूड। सबसेट यानी एक उसका जो हेड टर्म है, वो हेड टर्म के नीचे में ही, मतलब
हेड टर्म से कुछ एक टर्म उठाओगे तो वो कुछ दूसरा न्यू ये बनेगा, एक न्यू ये बनेगा, चीज़ ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे आईसीटी में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पार्ट उठाया है, कम्युनिकेशन को मैंने छोड़ दिया है। तो ये मच लार्जर टर्म है एंड ये उसका एक शॉर्टर टर्म है, शॉर्टर। सेम करके देखो यहाँ पे मैंने फूड, ठीक है, फूड इंग्रेडिएंट अगर मैं इसको बोलूँ, फूड इंग्रेडिएंट में बहुत कुछ आता है, बट मैं अगर फूड इंग्रेडिएंट में मैं अगर बिरयानी सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो बिरयानी में मैं क्या कैसे राइस सिलेक्ट करूँगा, कुछ स्पाइसेस दूंगा, चिकन दूंगा या मटन या एग पोटैटो अपने हिसाब से। तो बिरयानी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ फूड इंग्रेडिएंट। ये होता है सबसेट का मतलब कि एक हेड टर्म है, उसके नीचे जो दूसरा टर्म है जो वो हेड टर्म से ही डिराइव होके आया है, तो उसको हम सबसेट कहते हैं। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि आईसीटी इज अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये जो हमारा है, ठीक है, आई थिंक ये मैंने नोट नहीं लिखा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या मैंने कुछ यहाँ पे मिसटाइप किया है? मैंने यहाँ पे नोट नहीं लिखा, अरे यहाँ पे एक नोट होगा, ठीक है, कहीं पे तो होगा कि मतलब ये वाला बेसिकली ये एक ब्रॉडर टर्म है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ब्रॉडर टर्म है। हाँ ठीक ही, तो इस सब का नहीं, ये सबसेट नहीं है, हाँ आईटी का सबसेट नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आईटी पहले आता है एंड इसके नीचे आईसीटी आता है, ठीक है, बट ये कहना रॉन्ग है क्योंकि आईसीटी एक ब्रॉडर टर्म है एंड आईसीटी के नीचे आईटी आता है, ये चीज़ याद रखना। आईसीटी इज़ अ मोर कम्प्रिहेंसिव टर्म कंपेयर टू आईटी। ओके, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एंड द राइट टू यूज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। किसी को इसके बारे में आइडिया है, कॉपीराइट के बारे में, राइट टू यूज़ के बारे में? ये मैंने देखा, मेरे को भी एक्चुअली प्रॉपर आइडिया नहीं था, तो मैंने सर्च किया तो मेरे को उतना मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिला। किसी को और को पता है कि इसका प्रॉपर क्या होता है, इसका मीनिंग, राइट टू यूज़ अ कॉपीराइट? देखो मैंने जो पढ़ा कि कॉपीराइट का मतलब राइट टू यूज एंड कॉपीराइट मतलब ये होता है कि কপিরাইট मतलब মানে আমি বাংলাতেই বলছি, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো যখন আমি কোনো কিছুর প্রতি কপিরাইট করছি মানে আমি ক্লেম করছি যে এটা আমার ইনভেন্টেশন, মানে আমি ইনভেন্ট করেছি, আমার পারমিশন ছাড়া ইউজ করা যাবে না। এবং যখন আমি ওই কপিরাইটটা কিনছি মানে টাকা দিয়ে কিনছি, সাপোজ আমি ভাবছি যে আনএকাডেমির কোনো একটা পার্ট আমি কিনেছি, তো সেইটা আমি টাকা যখন দিয়েছি আমার সেটা রাইট টু ইউজ আছে, মানে ওইটা আমি ব্যবহার করতে পারি। তো এটাই হলো যে কপিরাইটটাকে আমি যখন কপিরাইট বলতে একটা বেঁধে রাখা জিনিস, আমি বেঁধে রাখছি যে এটা কপিরাইট করা আছে আমার, এই কপি করা যাবে না, ঠিক আছে? মানে যেমন কোনো সিনেমা বের হয়, সেই সিনেমার কিন্তু কপিরাইট করা থাকে, এবার ওই সিনেমাটাকে যে কেউ নিয়ে যেখানে সেখানে চালাতে পারে না, তাহলে তার বিরুদ্ধে লিগ্যাল স্টেপ নেওয়া হবে। এবার যখন কোনো সিনেমা হল চালাচ্ছে তখন সে রাইট টু ইউজটা কিনে নিচ্ছে ওই সিনেমার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে টাকা দিয়ে। ठीक, ठीक, এটাই হলো মূল বিষয়। हाँ तो ओवरऑल कलेक्टिवली क्या होता है कि अगर देखो ऐसा है, हाँ मेरे को भी ठीक है, तो कलेक्टिवली क्या होता है कि जैसे कॉपीराइट है, कॉपीराइट ये सोचो ये एक सेकेंड चीज़ है जो राइट टू यूज़ है, ठीक है, राइट टू यूज़। तो कॉपीराइट मतलब कि जो ओरिजिनल जो इन्वेंटर है, उसने एक ये अच्छा सोचो, यहाँ पे एक यूज़र 1 है और ये इन्वेंटर है, इसने कुछ इन्वेंट किया सॉफ्टवेयर एंड ये यूज़र 1 उसको ये है सॉफ्टवेयर 1, ये यूज़र 1 उसको ये कर रहा है यूज़। तो इसके पास इस सॉफ्टवेयर का एक कॉपी है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का एक कॉपी है, वो यूज़ कर सकता है, बट इस पर उसका हक नहीं है, ये ओनर यही है, बट इसने इसको एक ये कह सकते हो सर्टिफिकेट ऐसा टाइप का कुछ दिया है कि सर्टिफिकेट टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर, कि ये तुम इस सॉफ्टवेयर का एक कॉपी है, तुम उसको यूज़ कर सकते हो। तो वो हो गया कॉपीराइट। राइट टू यूज़ में होता है कि हाँ जैसे तुम उसने कहा कि ऐसा अनअकैडमी से कोई एक परचेज खरीदे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट उन्हीं का है, तुम्हारे पास उसको बस यूज़ करने का राइट है, तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, उसके हिसाब से अपना यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट किसी टाइप के चेंजेस वगैरह अलाउड तो नहीं है ना, यहाँ पे भी है।
ठीक है, किसी टाइप का चेंजेस ना यहाँ पे अलाउड है ना यहाँ पे अलाउड है। यहाँ पे वो एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है जो यूज़र को ये यूज़ करने का परमिशन देता है, ठीक। एंड यहाँ पे है कि उसको बस एक एक्सेस दिया जाता है इस चीज़ का, राइट टू यूज़, उसका बस एक एक्सेस है कि वो इस चीज़ को देख वगैरह सकता है। किसी टाइप से उसको मतलब मैनिपुलेशन एनी टाइप का वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब मेरे को जहाँ तक लगा, मतलब मैं अभी मेरे को उतना प्रॉपर मेरे को और देखना पड़ेगा कि कॉपीराइट और राइट टू यूज़ का मतलब मोर प्रॉपर। तो कॉपीराइट में ये था कि जो ओरिजिनल इन्वेंटर है वो एक अपना ये परमिशन देता है ऑन बेसिस ऑफ, मैनिपुलेशन अलाउ नहीं होता, सॉरी मैनिपुलेशन अलाउ नहीं होता, हाँ जस्ट हाँ यूज हाँ करने का परमिशन हाँ, वही मैं मैनिपुलेशन तो दोनों में अलाउ नहीं होता, वही मैं बोल रहा हूँ कि कॉपीराइट में वो बस उसको दे देता है यू कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर, एंड वो एक सर्टिफिकेट देता है कि उसके पास एक सर्टिफिकेट है एंड वो यूज़ कर सकता है, वो उसको यूज़ कर सकता है, वो ऑथेंटिक एक काम है, ठीक है। और दोनों में से किसी में भी, ठीक है, किसी में भी मैनिपुलेशन अलाउड नहीं होता है। मैनिपुलेशन तुम किसी टाइप से चेंजेस वहाँ पे नहीं ला सकते हो, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। एंड दोनों चीज़ ये दोनों ये पहले मैं ये और ये दोनों साइमल्टेनियस टर्म नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। ये दोनों साइमल्टेनियस टर्म नहीं है, ठीक है, ये दोनों टर्म सेम नहीं है। तो फॉर दैट रीजन स्टेटमेंट 2 भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग। एंड राइट टू यूज़ कॉपीराइट दो सेपरेट टर्म है, ठीक है। और जब और एक सुना होगा कि हाँ मतलब एक परचेस्ड है, जब हम लोग लाइसेंस लेते हैं ना, ठीक है, जब उसका लाइसेंस हम लोग खरीद लेते हैं तब उसको क्या कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस तब जब कोई एक सॉफ्टवेयर उसको जब खरीदे तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइसेंस इशू होता है, वहाँ पे कॉपीराइट इशू नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे जो इशू किया जाता है खरीदने के बाद वो है एक लाइसेंस, सॉफ्टवेयर का वो लाइसेंस वो इशू किया जाता है। तो कॉपीराइट एंड राइट टू यूज़ ये दोनों साइमल्टेनियस टर्म नहीं है, এই দুটো টার্ম আমরা একসাথে ইউজ করতে পারি না। तो वनটা तो रॉन्ग, 2 इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ठीक। मैंने एक्सप्लेनेशन इसका लिखा है, कोई डाउट नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि आईसीटी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव, आईसीटी का तो खैर हमें पता है कि सैटेलाइट ये सब होता है। कॉपीराइट का जो था मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि कॉपीराइट सॉफ्टवेयर इज़ प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट सिस्टम, द सेम प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू बुक बायर, मतलब जैसे नॉर्मल बुक का जो बुक के पे जो होता है कॉपीराइट, ठीक है। हाँ, तो सॉफ्टवेयर इज़ यूजुअली नॉट परचेस्ड बट अ लाइसेंस इज़ गिवन टू यूज़ इट। तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट या लाइसेंस टाइप का कह सकते हो दिया जाता है सो दैट यू कैन यूज़ इट। कॉपीराइट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बट ऑल डू नॉट यूज़ कॉपीराइट टू हैव राइट्स इन द सॉफ्टवेयर। बट हर एक कॉपीराइट का मतलब ये नहीं है कि वो यूज़ कर सकता, कुछ कॉपीराइट का मतलब ये भी होता है कि यू कैन नॉट यूज़ इट, ठीक है। कुछ का मतलब होता है कि यू कैन यूज़ इट विद अ सर्टिफिकेट, एंड कुछ और होता है मतलब तुम यूज़ कर ही नहीं सकते, अगर कॉपीराइट लगा दे तो देन यू कैन नॉट यूज़ इन सम केसेस। तो ये था कॉपीराइट का मतलब। बट ओवरऑल देखने जाए तो एक तरीके से वो याद कर कि राइट टू यूज़ एंड कॉपीराइट बोथ आर नॉट द साइमल्टेनियस टर्म, दोनों सेम टर्म नहीं है, दोज टू आर डिफरेंट टर्म, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हाँ ये वाला एक करते हैं, उसके बाद शायद खत्म ही हो गया। हाँ ये लास्ट, चलो ये विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली তাহলে ফাইনাল অ্যানসার কোনটা হবে? नाइदर वन नॉट टू, দুটোই স্টেটমেন্ট ভুল না। আচ্ছা, সেকেন্ড অপশন। हाँ সেকেন্ড অপশন, এই পিডিএফটা আমি স্যার এটা একবার বোঝাবেন কোনটা স্যার, এই ফার্স্ট এডটা। ফার্স্ট এডটা হুম। ফার্স্ট এডটা হচ্ছে এখানে বলছে, আমি যেমন সব এখানে বলছে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ আ সাবসেট অফ আইটি। এখানে বলছে কি আইটি হচ্ছে হেড পার্ট অ্যান্ড আইটি নিচে আসে আইসিটি, ঠিক আছে। বলছে আইটি হচ্ছে একটা হেড পার্ট, তার নিচে আসে আইসিটি, সাবসেট মানে হচ্ছে আইটি থেকে আইসিটি এসছে। বাট এইটা সেন্টেন্সটা রং, অ্যাকচুয়ালি আইসিটি ইজ আ ব্রডার পার্ট অ্যান্ড আইসিটি থেকে ডিরাইভ করা হয়েছে আইটি। আইটি থেকে আইসিটি আসেনি, আইসিটি থেকে আইটি এসছে। এইখানে বলছি যে আইটি থেকে আইসিটি এসছে, সাবসেট মানে হচ্ছে একটা হেড টার্ম থাকে, যেমন ধরো 4 টাইপস, তো একটা হেড টার্ম থাকে, তার একটা 4 টাইপ থাকে, তো এই 4 টাইপটাকে আমরা বলবো সাবসেট মানে একটা হেড টার্ম থাকে, তার ওই হেড টার্ম থেকে কিছু নতুন একটা জিনিস ডিরাইভ করা হয়, ওইটাকে আমরা বলি সাবসেট। তো এখানে এটাই বলতে চাইছে যে আইসিটি হচ্ছে আইটির সাবসেট, তো এটা ভুল। আইটি থেকে আইসিটি আসেনি, আইসিটি থেকে আইটি এসছে। এটা তোমরা বেটার হবে এটা মুখস্থ করে নাও যে আইসিটি ইজ আ ব্রডার টার্ম অ্যান্ড আইটি ইজ আ শর্টার টার্ম, অ্যান্ড আইটি ইজ আ সাবসেট অফ আইসিটি।
ঠিক আছে, এক্সপ্লেনেশন পার্টে অলরেডি লেখা রয়েছে, কোনো টাইপের কিছু কনফিউশন হবে না, ঠিক হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো তো এবারে? হ্যাঁ স্যার। এই এখানে এইখানে লেখা রয়েছে, যদি ডাউট হয় এটা একবার করে নিও, এই ছাড়া যদি ডাউট হয় তাহলে আর একবার জিজ্ঞেস, নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করে নিও, কোনো অসুবিধা নেই। এটা ঝপঝপ বলবো, তারপর ক্লাস শেষ, এটা জাস্ট which of the following correctly list the computer memory types from highest to lowest। আচ্ছা তোমরা এখানে দেখো দুটো জিনিস হয়তো তোমরা জানো না, একটা হচ্ছে CPU रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी, হয়তো আমি পড়িয়েছি कैश मेमोरी, वही CPU वाला जो क्लास में वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। CPU रजिस्टर को साइड में रखते हैं, एंड कैश मेमोरी अगर किसी को याद है तो बताओ, नहीं तो प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों में फास्ट होता कौन है? यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर में बताना है हाईएस्ट से लोएस्ट, ঠিক আছে, হাইয়েস্ট সে লোয়েস্ট का স্যার करेक्ट। আমি আগের প্রশ্নটার এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিয়েছি গ্রুপে, যদি কারো সমস্যা থাকলে সে দেখে নিতে পারে। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो दे वो दे दिए, वो ग्रुप में एक्सप्लेनेशन दे दिया, कुछ इशू है तो देख लेना, ठीक है। हाँ यहाँ से भी मैंने भी लिखा था, वो है वही। अच्छा इसका आंसर बताओ, देखो सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट में जाना है, तो लोएस्ट तो चलो हाईएस्ट का तो पता नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज लोएस्ट, लोएस्ट स्पीड किस में होता है पता है, एनी आइडिया, कोई गेस करना चाहता है? স্যার অপশন 1। অপশন 1 কেন হবে? কেন ফার্স্টে তো মানে সেকেন্ডারি তারপরে প্রাইমারি আসে, তো সেকেন্ডারি তারপর মেন মেমোরি যেটা র্যাম, তারপর ক্যাচ মেমোরি, আর সিপিইউ রেজিস্টারটা জানি না। না তুমি জাস্ট অপোজিটটা হয়, ये लोएस्ट से हाईएस्ट में लिखा हुआ है, ये है लोएस्ट से हाईएस्ट में, ये होता है लोएस्ट से हाईएस्ट में, एंड हाईएस्ट से लोएस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर्स आएगा, फिर कैश मेमोरी आएगा, फिर मेन मेमोरी आएगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सीपीयू रजिस्टर वो मदरबोर्ड के ऊपर में रजिस्टर्स होता है, ऐसा ऐसा टाइप्स का, अगर देखे होगे तो ऐसा ऐसा टाइप्स का रजिस्टर्स होता है, ठीक है। तो ये सबसे फास्ट जो कम्युनिकेशन स्पीड होता है ना इनका, सबसे फास्ट होता है, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली, आई थिंक इलेक्ट्रिकली इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो आता है नेक्स्ट होता है, अच्छा अगर सीपीयू रजिस्टर तो मेरे को ठीक है, मेरे को जहाँ तक होता है वो रजिस्टर होता है मदरबोर्ड के ऊपर में, एंड वो इलेक्ट्रिकली शायद, ठीक है। बट इसके बाद जो होता है वो कैश में, देखो कैश मेमोरी वो जो सीपीयू में मैंने बताया था ना फर्स्ट का कि सीपीयू के ऊपर वो कैश मेमोरी होता है, जो मतलब फ्रीक्वेंट जो इन्फॉर्मेशन यूज़ किया जाता है, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, तो ये मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होता है। अगर इसको हटा दे, रजिस्टर को हटा दे, तो ये ऑर्डर याद रखो, ये सबसे जो फास्टेस्ट होता है वो होता है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद आता है मेन मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद आता है मेन मेमोरी मतलब रैम, एंड देन आता है सेकेंडरी, ठीक है। एंड सबसे ऊपर आता है ये सीपीयू रजिस्टर, ये ऑर्डर होता है, ये है हाईएस्ट से लोएस्ट, और अगर लोएस्ट से हाईएस्ट पूछे तो ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर सीपीयू रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है, नेक्स्ट कैश मेमोरी, नेक्स्ट इज रैम, मेन मेमोरी, रैम और रोम, मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी, अच्छा मेन मेमोरी यहाँ पे अगर रोम भी होता, और एक बात कि मेन मेमोरी जब हम रेफर करते हैं ना तो मेन मेमोरी में रोम भी आता है हमारा, रोम इज ऑल्सो अ मेन मेमोरी, रैम एंड रोम बोथ आर मेन मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है कि मेमोरी क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, सीपीयू रजिस्टर क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी और मेन में क्या क्या आता है, एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे भी, ठीक है। क्लास में और एक स्टेटमेंट रीजन है, अच्छा खैर ये तो मैंने नहीं कराया है डेसिमल वगैरह, इसलिए इसको बस याद कर लेना, ये इस ऑर्डर में फ्लो होता है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई डाउट है? अब अभी मतलब कोई डाउट?